Arise, transcend thyself. Thou art man, and the whole nature of man is to become more than himself. Respected Pramini ma'am, our esteemed guests, dear colleagues and children, we welcome you to this edition of Spiritual Retreat, Day 2, Session 1. It's an honor for me to introduce our today's speaker, Dr. Sampadanand Mishra, to you. Dr. Sampadanand Mishra is working now as a professor at the Rashtraam School of Public Leadership, Rishihood University, Sonin. Sanskrit, Indian culture, yoga, and education are the subjects on which Dr. Mishra has spoken at various conferences, seminars, literary, and religious festivals, both nationally and internationally. In addition, Dr. Mishra, as a devotee of Sri Aurobindo and the Mother, is familiar with their writings and feels comfortable in delivering lectures on philosophy and practices of Sri Aurobindo's yoga. He has been to USA several times for giving lectures, conducting workshops, and participating in conferences and seminars. He was one of the keynote speakers in the WAVES conference that took place in Trinidad and Tobago in the year 2010. In the year 2014, Dr. Mishra was invited to the Monash University, Melbourne, for giving a talk on character development and service to humanity in a seminar on Swami Vivekananda. He is also closely associated with the members of the School of Philosophy and guides their Sanskrit teachers. Dr. Mishra worked as the associate editor of the collected works of Vashishta Kavya Kanth Ganapati Muni, published in 12 volumes. Dr. Mishra has founded and launched the first ever 24-hour Sanskrit radio called Divyavani Sanskrit Radio, and single-handedly managing the entire content since its inception in 2013. In the year 2014, Dr. Mishra founded Sanskrit Bal Sahitya Parishad with the aim of creating, evaluating, and propagating children's literature in Sanskrit. The Government of India has conferred the President's Award, Maharshi Badrayana Vyas Samman 2011, on Dr. Mishra for his outstanding contribution to Sanskrit. In the year 2014, the Ministry of Culture, Government of India, conferred the Senior Fellowship Award to Dr. Mishra for carrying out his research on the Vedic art of multiple concentration. In the year 2017, Junior Chamber International JCI India conferred the Literary Excellence Award on Dr. Mishra for his contribution to Sanskrit language and literature. Dr. Mishra was conferred the Kendra Sahitya Academy Bala Puraskar for 2018 for his book Shane Shane, a book of rhyming songs in Sanskrit for children. Dr. Mishra was conferred the Pandit Deen Dayal Upadhyay Reward for Re-Engineering India 2020 by the Rethink India organization. Following the Jaipuria tradition, we all will observe 30-second silence to be connected to the divine. Now we request Dr. Sampadanand Mishra ji to enlighten us with his words of wisdom. Namaskar to all of you. So we begin with a mantra. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
So this is how some of the Upanishads begin with a Shanti Patha and end with a Shanti Patha. The Upanishads, when we are talking about our subject today, the morning session is stories from the Upanishads or Upanishads through stories. So I'm going to contemplate on a single story by which we will be becoming familiar with the content of what is known as Upanishads. So before I proceed, may I ask the participants, whoever is willing can reply to it, respond to it. Have you heard the word Upanishad? Yes. What does it mean? But actually, they are the stories that tell us the great secrets of life. For example, who am I? Why is this universe created? What is the purpose in our life, etc. Sir. Okay, wonderful, beautiful, Shashwat. So it addresses to certain fundamental questions. So we know these are Upanishads. So anyone else? So they are Vedic texts that tell us about the secrets of the universe. Okay, good. Sir, actually, the Vedic text that was composed by the lords, first it was done into Vedas. But as some people, as Vedas were a little complex, so some people were not able to comprehend them. That is why they were made into shorter stories and through life questions in form of Upanishads and Puranas. And sir, Upanishads are the main texts. I think that Upanishads mean to sit near our Guru and to listen to what he's saying or to grasp what he's trying to tell us. Ma'am, basically, as Samriddhi said, ma'am, the word Upanishad literally means sitting down near something. Ma'am, what was the thing? It is said that in order to completely grasp the teachings of the Vedas, we need proper guidance from a guru. So basically, not everyone had access to this. So in order to make the teachings from the Vedas more accessible to the general masses, some rishis and some gurus decided to curate the Upanishads, which are basically the teaching of the Vedas, but in a more simplified manner. Upanishads are the knowledge that has passed from the teachers to their students through oral conversations in form of stories. सर जैसे उप इसको दो शब्द देख सकते हैं. उप मतलब होता है पास बैठना. पास मतलब उप मतलब पास और निषद मतलब बैठकर. तो हम लोग जो किसी के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित करें उसे हम उपनिषद कहते हैं. या हम लोग इसको और दूसरी दृष्टि से देख करके ये कह सकते हैं कि प्रभु के समीप बैठ करके अपने या स्वयं के समीप बैठ करके जो हम ज्ञान अर्जित करें उसे उपनिषद. बहुत ही सुंदर. Sir, Upanishads are the religious texts that have been taken up from the Vedas, but they have been simplified in the form of stories and short stories. Ma'am, they are basically life lessons in form of stories. Ma'am, they tell us about the secrets of the universe. Ma'am, how is it created? Ma'am, everything related to the mysteries of the universe and the life lessons also. तो मुझे लगता है कि उपनिषद वेदों के ही हिस्सा है, लेकिन जो वेद हैं उसमें सब प्रकार के, उसमें कर्म भी है, उपासना भी, ज्ञान भी है, उसमें बहुत रिचुअल्स भी हैं. लेकिन उपनिषद जो मूल है वो आध्यात्मिक उन्नति पर वो मनुष्य को केंद्रित करता है. जो मतलब निष्काम रूप से अपना उद्धार करना चाहते हैं उनके लिए उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है. धन्यवाद सारांश. जैसे आप लोगों ने बताया, उपनिषद का एक अर्थ होता है गुरु के पास बैठ के उस रहस्य को जानना, जिस रहस्य को हम हमारी साधारण चेतना में स्थित होकर नहीं जान पाते हैं, जिस रहस्य को हम साधारण तौर पर देख भी नहीं पाते हैं. उस रहस्य को गुरु के पास बैठ के जानना. पास बैठना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो रहस्य होता है, जो ज्ञान रहस्यमय होता है, उसको पब्लिकली नहीं दिया जा सकता है. उसके लिए भी कुछ एक मार्ग अपनाना है जिसको हम रहस्यमय की एक स्थिति में या मार्ग से हम उसे जान सकते हैं. ये एक प्रकार का अर्थ है उपनिषद का. दूसरा अर्थ जैसे कृणाली ने बताया था
कि स्वयं के पास बैठकर, मतलब हम जितने हम हमारे खुद के करीब होंगे, जितने हम हमारे आत्मा के साथ हमारा जुड़ाव रहेगा, हमारा जो इनमोस्ट बीइंग है उसके करीब हम जितना बैठेंगे, यही अर्थ होता है उपवास का भी। मतलब पास ही बैठना, पास ही रहना, खुद के साथ ही रहना। जितना हम क्लोज होएंगे, मोर वी आर क्लोज टू अवर इनमोस्ट बीइंग, मोर वी गेट what it means. So it reveals itself to us. And what gets revealed is the knowledge that is there in the Upanishads. Upanishads are part of the Vedas. इसको जानबूझकर किसी ने अलग नहीं किया है, ठीक है, ये सब पार्ट ऑफ द उपनिषद। जैसे सारांश ने बताया कि ये जो उपनिषदों में जो विविधता है, जो प्रतीकात्मकता है, एक सिंबल्स है, बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना और बहुत सारे देवी देवताओं को हम देखते हैं वेदों में, ठीक है। तो वेदों का जो रियलाइजेशन है वो है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य जो है वो एक है, रियलिटी जो है वो एक ही है, अखंड है, जो इंडिविजिबल है, जो वन है, बट इट अपीयर्स, इट मैनिफेस्ट्स इन मेनी। बहुधा वदंती, इंद्रम मित्रम, जैसे बहुत प्रकार के देवी देवताएं होते हैं। इंद्र है, मित्र है, वरुण है, अर्यमा है, भग है, विष्णु है, रुद्र है, पशुपति है, इला है, सरस्वती है, मही है, भारती है, इतनी सारी देवी देवताएं हैं। उपनिषदों में ये सब को एक चीज में कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया है, ब्रह्म। इसीलिए उपनिषदों को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। उपनिषदों का एक दूसरा नाम है ब्रह्म विद्या। वो ब्रह्म विद्या का जो प्राप्ति होती है, ब्रह्म विद्या को हम 3 चीजों के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। एक तो है कि सेल्फ नॉलेज इसके लिए चाहिए, हमको आत्मज्ञान होना चाहिए, हमको खुद के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए। तो जब हम आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं तो ये लगता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शायद ही कुछ विशेष लोग पैदा हुए हैं, जो मुनि ऋषि लोग होंगे, योगी लोग होंगे, जंगल में बैठकर या पहाड़ों की गुफा में बैठकर जो तपस्या करते हैं, शायद वही लोग हैं जो उसको आत्मज्ञान होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम सबको आत्मज्ञान होना चाहिए और हम सबको थोड़ा बहुत आत्मज्ञान है भी। जो भी आत्मज्ञान है, जैसे मैं जानता हूं कि मेरा एक शरीर है, मेरा प्राण भी है, मेरे अंदर एक आत्मा है, मेरे अंदर इमोशंस है, मेरा एक मन है, मन की विविध क्रियाएं हैं। तो खुद के बारे में मुझे जितना ज्ञान है वह आत्मज्ञान है। लेकिन साधारण स्तर पर जितना ज्ञान होता है वो पूरा का पूरा आत्मज्ञान नहीं होता है। इसलिए जो कंप्लीट सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए हमें, वो नहीं है। तो एजुकेशन का, योग का ये पर्पस होता है कि जो थोड़ा बहुत आत्मज्ञान हमें है तो उस आत्मज्ञान को हम और भी विस्तार रूप में, एकदम एक परफेक्शन के लेवल पर, एक कंप्लीट हमारे आत्मज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए जो मार्ग को अपनाया गया है, जिन लोगों ने इस आत्मज्ञान को प्राप्त किया है, उनके जो अनुभव है, वो अनुभव को वो फिर दूसरों को बांटते हैं, दूसरों को समझाते हैं। किसको समझाते हैं? जिसके मन में ये प्रश्न उठता है। जब तक हम कुछ पूछेंगे नहीं तो टीचर क्या हमें बताएंगे? नहीं बताएंगे। और बताते भी है तो वो हमारी चेतना में प्रवेश भी नहीं करेगा, हम उसको धारण करने में समर्थ भी नहीं हो पाएंगे। Will not be able to even grasp it if someone asks and we are not seeking after it. तो जिन लोगों के मन में प्रश्न उगता है कि मैं कौन हूँ, ये धरती क्या है, ये सृष्टि क्या है, क्यों बनाई गई है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, इस प्रकार के प्रश्न जिनके मन में उगता है वही लोग सीकर्स होते हैं। तो वो अनुसंधित्सु होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके मन में जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासु को गुरु लोग जान पाते हैं कि उसके अंदर जिज्ञासा है, जानने की प्रबल इच्छा है। तो उस इच्छुक को, जिज्ञासु को, अनुसंधित्सु के, जो सत्य का खोज करता है, उसको गुरु अपने पास बिठाकर उस ज्ञान को देता है जो ज्ञान वो खुद प्राप्त किया है।
कभी कभी उसको समझाने के लिए मेटाफोर यूज करते हैं, सिमिली यूज करते हैं और कहानियों का प्रयोग होता है। तो इसलिए उपनिषद, सारे उपनिषद जो है वो संवाद शैली में है, कन्वर्सेशनल डायलॉग्स। तो गुरु शिष्य को उसका उत्तर में बताते हैं कि क्या है जो प्रश्न शिष्य के मन में आता है, उस प्रश्न का, उस समस्या का समाधान दे। ये हो भी सकता है कि कईयों ने ये प्रश्न पूछा है, गुरु ने सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार से, एक मार्ग से वह उत्तर देते हैं। तो सारे उपनिषद जो है वो संवाद शैली में है। एक तो है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। ये जो सेल्फ नॉलेज है, बहुत सारे लोगों को सेल्फ नॉलेज है, आत्मज्ञान है, एक कंप्लीट आत्मज्ञान भी है, हायर लेवल का नॉलेज भी है, लेकिन वह आत्मज्ञान भी संपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि हर कोई, हम ये विश्व से आइसोलेटेड नहीं है, हम भी इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का एक अंश है। वह पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर भी है, हम स्वयं ब्रह्मांड है। तो इसीलिए ब्रह्मांड को अगर हम हमारे अंदर नहीं देख पाते हैं, खुद को भी ब्रह्मांड के साथ जोड़ नहीं पाते हैं, तो वह आत्मज्ञान भी असंपूर्ण रह जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है। इसीलिए आत्मज्ञान के साथ साथ हमको ब्रह्मांड का ज्ञान भी होना चाहिए, और ब्रह्मांड के साथ हमको खुद को जोड़ना चाहिए, और ब्रह्मांड का जो नीति नियम है, उस नीति नियम को अनुसरण करते हुए हम हमारे जीवन को संचालित करना चाहिए, जीवन की सारी गतिविधियों को संचालित करना चाहिए। तब जाके हम हार्मोनियसली ये ब्रह्मांड के साथ जीते हैं। तो एक है आत्मज्ञान और एक है ब्रह्मांड ज्ञान। और यह जो व्यक्ति है, जो समष्टि है, जो व्यष्टि है, जो समष्टि है, जो पिंड है, जो ब्रह्मांड है, इस पिंड और ब्रह्मांड जिसका एक्सटेंशन है, जिसका मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्ति है, उस परमात्मा का, उस परम चेतना का ज्ञान भी हमें प्राप्त होना चाहिए, उसके बारे में भी हमको सचेतन होना है। तो इसीलिए जो ब्रह्म विद्या हम कहते हैं कि उपनिषद ही ब्रह्म विद्या है, तो वह ब्रह्म विद्या में आत्मज्ञान के साथ साथ ब्रह्मांड ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, ये तीनों जब मिल जाते हैं तब जाके ये बनता है ब्रह्म विद्या, और वह ब्रह्म विद्या होता है सारे उपनिषदों का विषय। लेकिन ब्रह्म विद्या को हम हर प्रकार से, विविध मार्ग से हम उसको जान सकते हैं। एक एक उपनिषद ब्रह्म विद्या के एक एक विषय को लेकर, एक एक अंश को लेकर वो कॉन्सेंट्रेटेडली उस विषय के बारे में बात करते हैं। जैसे ईशोपनिषद का नाम सुना होगा, कई सारे उपनिषद है, ईशोपनिषद है, कठोपनिषद है, केनोपनिषद है, ऐसे तो 250 उपनिषद यू विल फाइंड इन प्रिंटेड फॉर्म। ठीक है, जो मुख्य उपनिषद माना जाता है तो उसको 12-14 मुख्य उपनिषद होते हैं, जो एंशिएंट उपनिषद होते हैं। तो आज भी उपनिषदों का मतलब प्राप्त होता है, ऐसे नहीं कि उपनिषदों का होना बंद हो गया है, क्योंकि ये इटर्नल होता है, सनातन होता है। वह रहस्यमय ज्ञान जिसकी चेतना में उगता है, तो वो भी खुद अपने जो भी होता है चेतना में, उसको जब अभिव्यक्त करते हैं, उस प्रकार के ब्रह्मज्ञानी जिनके पास वह ज्ञान आता है, तो उस ज्ञान को जो वो बांटते हैं उसको भी उपनिषद कहेंगे। जैसे श्री अरविंदो के लाइफ डिवाइन देख लो, सावित्री देख लो, उसको भी वेद और उपनिषदों की कोटि में हम रख सकते हैं। रमण महर्षि जैसे बहुत बड़े बड़े जो आधुनिक समय के जो ऋषि लोग हैं, क्योंकि ये ऋषि परंपरा कोई प्राचीन युग की नहीं है, ऋषि लोग आज भी जन्म होते हैं और ये परंपरा में एक नैरंतर्य है, एक कंटिन्यूटी है, आज भी ऋषि लोग पैदा होते हैं। तो इन ऋषियों का जो अनुभूति है, जो उपलब्धि है, उसको जहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, उसको भी हम वेद और उपनिषद की नाम दे सकते हैं। तो आज भी उपनिषदों की रचना, इसको तो हम रचना नहीं कह सकते हैं, जो रिकॉर्ड है, क्योंकि ये इसको कोई रचता नहीं, कोई जानबूझकर, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं एक पोएट्री लिखा, तो ये उपनिषद नहीं हो सकता है, ये वेद नहीं हो सकता है। अगर कुछ मेरी चेतना में अपने आप स्वाभाविक रूप में उगता है, वो एक उच्च कोटि का अनुभूति है, तो वो उच्च कोटि के अनुभूति को, जैसी अनुभूति हुई, उसको बिना डिस्ट्यूट करते हुए जब ये अभिव्यक्ति को हम रिकॉर्ड करते हैं, वह उपनिषद बन जाता है। जब माइंड इंटरफेयर करता है तो वो डिस्टोर्ट हो जाता है, हम उसको वर्णन करते हैं, आगे ले जाते हैं,
उसको हम वेद और उपनिषद की कोटि में नहीं ला सकते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि मुख्य उपनिषद है, और मुख्य उपनिषद जो 12-14 मुख्य उपनिषद है, हर एक उपनिषद का एक कॉन्सेंट्रेटेड टॉपिक है। जैसे ईशोपनिषद में ये पिंड और ब्रह्मांड का रिलेशनशिप, जीवन क्या है, जीवन को हम कैसे जिए, तो जीवन जीने की जो आर्ट एंड साइंस है वो जिस प्रकार से दिया गया है वो एक अद्भुत विषय है, जिसको हम जाने तो जीवन जीने की, एक उच्चतर जीवन जीने की कला और विज्ञान को हम जान पाएंगे। ये ईशोपनिषद का विषय वस्तु है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं आज जो विषय हम लेंगे वो एक कहानी के माध्यम से हम उसको जानेंगे, उस उपनिषद के विषय वस्तु के। वह है बहुत ही जो फेमस है कठ उपनिषद। तो जिसमें ये कठ उपनिषद जो है, जिसमें हम किसकी कहानी पाते हैं, कोई बता सकता है? कठोपनिषद में किसकी कहानी हमको मिलता है, किसके बीच का संवाद हमको देखने को मिलता है? यम और नचिकेता। और आप सबको ये मालूम होगा कि यम और नचिकेता के बीच में जो संवाद हुआ था, तो इस संवाद को हम एक विस्तार रूप में आज देखेंगे। ये नचिकेता है कौन, यम के पास क्यों जाता है, कौन भेजता है, उसके जाने का यम के पास क्या महत्व है, और यम से वो क्या सीखता है, और कौन सा ज्ञान कठोपनिषद में है, और उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम थोड़ा इस विषय पर आए उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो उपनिषद है ये खाली भारत तक, सनातन धर्म तक सीमित होकर नहीं रह गया है। ये जो विद्या है, ब्रह्म विद्या है, विश्व के बहुत बड़े बड़े दृष्टाओं को, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, कवियों को, बहुत बड़े बड़े मनीषियों को, जीनियस लोगों को ये प्रभावित किया है। जैसे हम देखते हैं उपनिषदों का जो सर्वप्रथम जो अंग्रेजी अनुवाद, आपको पता है सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था उपनिषदों का? वो है ब्रिटिश का एक ब्रिटिश पोएट जिनका नाम है एडविन आर्नोल्ड। तो जिन्होंने ये जो कठोपनिषद को अनुवाद किया था, और वह नाम है द सीक्रेट ऑफ द डेप्थ्स। आज हमने इस विषय को क्यों चुना है? आपको ये अनुभव हम कर रहे हैं आज के युग में, विशेष करके आज की जो स्थिति है, पिछले 2 साल से 1.5-2 साल से पूरी दुनिया जो झेल रही है, जो पेंडेमिक की सिचुएशन है, लोगों के मन में मृत्यु की कितना भय है, कितना भयंकर स्थिति से गुजरते हुए पूरी दुनिया जा रही है। ये मृत्यु के भय से बहुत लोग मृत हो गए हैं, और ये मृत्यु के भय आज सबको इस तरह मतलब पकड़ के रखा है, तो किसी को शांति से जीने भी नहीं देता है। तो आज ये प्रासंगिक बनता है कि इस विषय को, इस उपनिषद की कहानी को, इस उपनिषद में जो वर्णन हुआ है, क्योंकि इसका विषय ही यही है कि मृत्यु है क्या चीज, क्या हमको मृत्यु से डर होना चाहिए, या मृत्यु को हम कैसे फेस करें। तो भारत में मृत्यु को, हमारे भारतीय दर्शन को देखेंगे, जो भारत के जो मुनि ऋषि लोग हैं उनके जो देन है इस विषय को लोग लेकर, और जो परंपरा है उसको हम देखेंगे, तो ये हमको जानने को मिलेगा कि भारत में मृत्यु को कोई एक बहुत बड़ी दुख की वस्तु के हिसाब से नहीं लिया गया है। इसको एक उत्सव माना जाता है, क्योंकि ये मृत्यु जो है, ये किसका मृत्यु होता है इसके ऊपर निर्भर करता है। तो वास्तव में क्या मृत्यु होती है और किसका मृत्यु होता है, और वास्तव में हम लोगों को मृत्यु पर शोक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके विषय में जो व्यापक चर्चा है कठोपनिषद में, फिर आगे चलकर इसी विषय को लेकर पूरे के पूरे जो श्रीमद् भगवद गीता को हम देखते हैं, ज्यादा जो कठोपनिषद की विषय वस्तु है वह विषय वस्तु को हम श्रीमद् भगवद गीता में और भी सरल रूप में उसका वर्णन हम देखते हैं, जहां पे यही मृत्यु भय ही अर्जुन को उस दिन युद्ध नहीं करने के लिए बेबस कर दिया था। इसीलिए अर्जुन ने पूरा गांडीव छोड़कर बैठ गया था कि बोला कि मैं नहीं युद्ध करूंगा। ये मृत्यु को इतने विशाल तरीके से जो मृत्यु होने जा रहा है, इस दृश्य को मैं नहीं देख पाऊंगा। तो ये मृत्यु का भय ही उस दिन अर्जुन को बेबस कर दिया था, ये तय करने के लिए, ये डिसीजन लेने के लिए कि मैं नहीं युद्ध करूंगा।
तो ये जो विषय है, इस विषय को सिर्फ भारत के कुछ लोग या भारतवासियों, भारत की दर्शन परंपरा नहीं, समग्र विश्व में इस उपनिषदों का जो प्रभाव रहा है, तो वो हमको देखने को मिलता है जब हम देखते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े नोवेलिस्ट। जैसे और एक एग्जांपल ले लीजिए, एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे जो डब्ल्यू समरेस्ट मौघम, जो जिन्होंने एक 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 फ्रेज को, अपने नॉवेल का नाम ही इसे रखा है द रेजर्स एज, निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ओके, सो ये जो मार्ग है, ये उपनिषदों के मार्गों में जाना बहुत ही दुष्कर कार्य है। इस पर चलना जैसे कि एक खड्ग के धार पर हम चलते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो वो कट जाएगा। तो उन्होंने अपने पूरे के पूरे जो नॉवेल का नाम ही रखा है द रेजर्स एज, जिसमें पूरे कठोपनिषद की विषय वस्तु को लेकर केंद्र करके अपनी जो तरीके से वो अपने नॉवेल को लिखा है। इस प्रकार हम देखते हैं W.B. Yeats, जो फिर देखते हैं अमेरिकन एसेइस्ट जो है राल्फ वाल्डो इमर्सन, जो जिसका पोएम एक है ब्रह्मा, जिसका नाम है ब्रह्मा। तो पूरे कठोपनिषद की जो फिलोसॉफी को है उन्होंने वहां पे दर्शाया, उसका वर्णन किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो जर्मन दार्शनिक होते हैं, इंडोलॉजिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े जीनियस लोग होते हैं, स्कॉलर लोग होते हैं, मैक्स मुलर या शोपेनहावर, तो ये सारे लोग उपनिषदों को पढ़ा है अच्छी तरह से, अपने जीवन में जो भी वो उन लोगों ने किया है, बोला है, उसमें उपनिषदों का कुछ ना कुछ तत्वों को उतारा है और उसका अभिव्यक्त किया है अपने तरीके से, अपने नॉवेल के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से, अपने पोएम के माध्यम से, अपने फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस के माध्यम से। तो इसका जो प्रभाव है कठोपनिषद का वो बहुत ही व्यापक रहा है। तो इस उपनिषद की जो मुख्य जो सेंटर है वह है नचिकेता, और इस नचिकेता के चारों ओर क्या क्या होता है और किस प्रकार जो व्यापक ज्ञान है जो दिया गया है उसको हम जानते हैं। किसको लेकर? विषय है मृत्यु। तो इस कहानी को हम जानेंगे। कहानी इस प्रकार है कि एक ऋषि थे, ऋषि का नाम था वाजश्रवस। क्या नाम था? वाजश्रवस। इसे तो हम जानते हैं कि एक ऋषि का संतान, जो ऋषि का एक संतान था, एक पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। ये हम सब जानते हैं कि वाजश्रवस एक ऋषि है। इस ऋषि का जो पुत्र था नचिकेता। लेकिन कठोपनिषद को हम अच्छी तरह से अगर पढ़ें तो ये हमको देखने को मिलेगा कि नचिकेता के जो पिताजी का नाम है वो सिर्फ एक ही नाम नहीं है, हमको वहां पे 4 नाम मिलते हैं। एक तो मिलता है वाजश्रवस, एक मिलता है गौतम, एक मिलता है उद्दालक, एक मिलता है आरुणि। तो ये 4 नाम से जाने जाते हैं। उद्दालक, ऋषि उद्दालक, ऋषि आरुणि, ऋषि गौतम और ऋषि वाजश्रवस। ये 4 नाम हमको मिलते हैं नचिकेता के पिताजी का। कोई अगर आपको आगे पूछे कि नचिकेता जी के पिताजी का नाम क्या था, तो आप ये 4 नाम में से किसी एक नाम को बता सकते हैं या 4 नाम भी बता सकते हैं। तो वाजश्रवस, गौतम, उद्दालक, आरुणि, ऐसे तो एक व्यक्ति को हम बोलते हैं कि एक ही का नाम 4 था, लेकिन हम अगर गहराई से इस विषय का मंथन करेंगे तो ये हमको जानने को मिलेगा कि ये 4 एक ऋषि नहीं थे, ये 4 अलग अलग ऋषि थे। क्या 4 अलग अलग ऋषि के एक पुत्र था नचिकेता? नहीं, नचिकेता को भी यहाँ पे प्रतीकात्मक एक सिंबलिक वे में दिखा गया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो ऋषि लोग थे, उद्दालक हो, आरुणि हो, वाजश्रवा हो, गौतम हो, तो ये इतने उनके अंदर वो इंटेंसिटी था, जो तीव्रता थी, किसके लिए? प्रबल जिज्ञासा। किसके लिए? आत्मज्ञान के लिए, सत्य के लिए। वो सत्य की खोज में अपने समग्र जीवन को उत्सर्ग किए थे कि सत्य को पाए बिना हम एक क्षण भी चुप नहीं बैठेंगे। ये तीव्रता के साथ
ये सारे सत्य को खोज रहे थे। और सत्य को जो हम खोज रहे हैं, हमारे अंदर सत्य को पाने की, सत्य को प्राप्त करने की, सत्य के मार्ग में चलने की जो प्रबल आकांक्षा होती है, जो एस्पिरेशन होता है। एस्पिरेशन इसीलिए होता है, हम ये अनुभव करते हैं, उपलब्ध करते हैं कि हमारे अंदर ऐसे कुछ है जो अभी तक भी अभिव्यक्त नहीं हुए। देयर इज समथिंग इन अस व्हिच इज येट टू मैनिफेस्ट। ये जो येट टू मैनिफेस्ट, ये बोध होता है कि हम पूरी तरह से हम खुद को नहीं जान पाए हैं, अभी भी बहुत कुछ है जिसको जानने का है। और फिर ये भाव जब हमारे अंदर आता है, पर हम ढूंढना शुरू करते हैं, खोजना शुरू करते हैं, उसको जानने के लिए हमारे अंदर वह इच्छा जागृत होती है। वह इच्छा, वह जिज्ञासा, वह प्रबल जिज्ञासा, वह जो अभिव्यक्त करने की, जानने की पूर्ण रूप से, वह प्रबल जिज्ञासा का नाम है नचिकेता। तो सत्य के अनुसरण करने वालों की जो जिज्ञासा है, इच्छा की प्रवृत्ति है, जो इच्छा है, जो अभिप्सा है, जो आस्पृहा है, क्योंकि अभी तक जो अनभिव्यक्त है, जो अनमैनिफेस्ट है, जो अननोएबल है, अभी जो अननोन है अभी तक, उसको जानने के लिए जो जिज्ञासा है, उसका नाम है नचिकेता। नचिकेता इज द वेरी फायर ऑफ एस्पिरेशन सेंटर्ड इन एवरी सीकर। और ये जो ऋषि है, उद्दालक है, आरुणि है, वाजश्रवस है, गौतम है, उपनिषद के युग में वह प्रबल जिज्ञासु ऋषि लोग थे जो इस प्रबल आकांक्षा को अपने अंदर जागृत करते हुए आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़े थे। तो क्या होता है जब हम उस आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं? क्यों चलते हैं? हम हमारे अंदर दो आत्माओं को देखते हैं। एक है जो हमको आगे बढ़ने नहीं देता है, वही पुरानी चीजों को पकड़ के रख के, और कुछ मतलब चीजें हैं जिसको वो पूरी तरह से समर्पित करने के लिए तैयार नहीं होता है। देना बहुत बड़ी चीज है, हम देते हैं, बहुत लोग दान करते हैं, पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं, ठीक है। तो वी गिव इम्पोर्टेंस टू गिफ्टिंग बट नॉट टू द गिफ्ट। ये हमारी एक समस्या है। ये समस्या किसका है? ये हमारे वही जो पुरानी जो चेतना है, जिस सारी पुरानी चीजों को पकड़ के रखना चाहता है। We do rituals. We give importance to the ritual, but not to the purpose of the ritual. So gifting, we feel it is a great thing to gift, but we forget what we gift. Is it worth giving? इसी को पहले दिखाया गया है कि जो हम देना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार के ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहते हैं, दुनिया में हम कोई भी चीज हम प्राप्त करें, चाहे ज्ञान हो, धन हो, बस किसी भी संपदा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक हम खुद देना नहीं जानते। इसीलिए हमारी संस्कृति में, आध्यात्मिक परंपरा में देना का, इस देने की जो भाव है, उसी को कहा जाता था यज्ञ। यज्ञ का अर्थ नहीं है कि हम आग जलाए, हवन करें और उसमें बोल दे कि इंद्राय स्वाहा इदम न मम इदम इंद्राय, अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम न मम। ये तो ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ जो रिचुअल हम परफॉर्म करते हैं, ये पर्पस ऑफ द रिचुअल भी इज मोस्ट इंपोर्टेंट, कि हम क्यों करते हैं। इसके साथ जब हम करते हैं कि इदम न मम, ये भाव भी हमारे अंदर रहना चाहिए कि सचमुच में मेरा कुछ नहीं है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ भगवान का ही है। ये भाव को अपने अंदर कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, न कि खाली रिचुअल है। सो दैट इज व्हाई वी गिव इंपोर्टेंस टू गिफ्टिंग बट नॉट टू द गिफ्ट। वी गिव इंपोर्टेंस टू द रिचुअल नॉट टू द पर्पस ऑफ द रिचुअल। तो यही चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि जो वाजश्रवस है, वो अपने आप में एक विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान करके वो क्या करते हैं? गायों का दान करते हैं और कई सारी चीजों का भी दान करते हैं। विश्वजित यज्ञ का जो असल पर्पस है, उसमें सब कुछ देने का है। ऐसा नहीं कि हम कुछ रख दे और बाकी जो यूजलेस चीजें हैं उसी को ही दे दे। तो नचिकेता जो है, जो
नई चेतना की जो सोल है उसको ये पसंद नहीं आता है। ये क्या करता है, ये जो गिफ्ट दे रहा है, ये सारे जो गायें हैं तो वो ना तो दूध देने में समर्थ है, ना किसी काम में आने वाले हैं, वो तो बूढ़ी हो गई है, यूजलेस हो गए हैं। जैसे इस प्रकार गायों को वो दान में दे देते हैं जो कि नॉट वर्थ गिविंग, और जो अच्छे अच्छे गाय हैं वो उसको अपने पास रखते हैं। तो यही भाव आप देखो कि बहुत सारे लोगों में है कि हम जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको देना नहीं चाहते हैं, जो हमारे काम में नहीं आएगा। गिफ्ट खरीदते वक्त हम बहुत बार्गेनिंग करते हैं खुद के साथ, अरे इतने पैसे का गिफ्ट क्यों दे उससे, तो ये क्यों दे। या घर में से अगर कुछ देना चाहते हैं, कि बहुत सारे समय ऐसा होता है कि हमारे पुरानी चीज को हम फेंकना नहीं चाहते हैं, किसी को दे देना चाहते हैं, पर किस भाव से दिया जाता है उसको भी देखना है। तो अच्छी चीजों को हम हमारे पास रखते हैं और बुरी चीजों को हम दूसरों को दे देते हैं। आज खाना अच्छा नहीं बना है, चलो उनको दे दो, जो चाकर नौकर लोग हैं उनको दे दो, वो खा दे, हम कुछ अच्छा बना के खाएंगे, ये तो खाना अच्छा नहीं लगता है। अगर खुद को अच्छा नहीं लगता है तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा, ये भी तो सोचना चाहिए। पर हम करते ऐसे ही है। तो ऐसा ही भाव है। तो जब गायों को ऐसे देने लगे हैं तो नचिकेता को ये पसंद नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो पुरानी चेतना को बिलोंग करती, वो पुराने भावों को, पुरानी जो पुराना सोच है, तो वो हमारे अंदर इतने प्रबल भाव से रहता है, जो हमारे वास्तविक जो सच, जो हमारे ट्रू इनमोस्ट बीइंग है, उसको वो पसंद नहीं होता है। तो तब नचिकेता जाके अपने पिताजी को बोलते हैं कि ये क्या है, आप ये क्यों कर रहे हैं, जिसका कोई वर्द ही नहीं है, आप उसी को क्यों दान में दे देते हो। लेकिन वो कहाँ सुनने वाले हैं, वो नहीं सुनते हैं, वो अपने आप देते ही रहते हैं, वो अपने आप देते ही रहते हैं। फिर नचिकेता को ये एकदम ही अच्छा नहीं लगता है, तो अंदर से वो फिर जाके पूछते हैं कि पिताजी आप अगर दे देना चाहते हैं तो मुझे किसको देने वाले हो, क्योंकि ये तो विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हो, तो मुझे किसको देंगे आप। तो वो सुनते नहीं, नचिकेता के पिताजी वो सुनते नहीं, वो चुपचाप अपने काम करते रहते हैं। नचिकेता फिर एक बार बोलता है, दो बार बोलता है, 3 बार बोलता है। जब 3 बार बोल देता है नचिकेता, तो फिर उनके पिताजी को गुस्सा आता है। तो वो गुस्से में क्या बोलते हैं कि तुझे तो मैं यम को अर्पण करूंगा, मृत्यु को दे दूंगा। तो आप ये लोग सोचेंगे अच्छा ये ऋषि लोग है तो इनके अंदर गुस्सा क्यों आता है। ये कोई एक ही उदाहरण नहीं है, कई सारे उदाहरण हैं। अष्टावक्र की कहानी सुना होगा। अष्टावक्र, क्यों उसको अष्टावक्र कहा जाता है, क्योंकि उनके बॉडी में 8 वक्रताएं हैं, 8 डिफॉर्मिटीज है। और वो 8 डिफॉर्मिटीज का कारण क्या था, क्योंकि उनके जो पिताजी है, जो कहोड मुनि थे, तो वो भी अपने गुस्से में आकर इस प्रकार के शाप दिए थे कि जो गर्भ में रहकर, अब जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, ये गर्भ में रहकर भी मेरा दोष निकालता है, तो पैदा होने के बाद ये और भी कुछ कर सकता है। जाओ, तुमने आज मेरा 8 दोष निकाले हैं, तो मैं तुमको शाप देता हूं, तुम 8 वक्रता के साथ पैदा हो। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये फिर सिंबलिकली से ये दिखाया जाता है कि हमारी चेतना में बहुत सारी चीजें ऐसे छुप के रह जाती हैं। बड़े बड़े साधकों के चेतना में भी ये छुप के रह जाती है, जो पुरानी चीजें हैं, जो कभी कभी उभर के आ जाते हैं। इसलिए साधना का मार्ग जो है, अध्यात्म का मार्ग जो है, ये इतना सिंपल सुकर मार्ग नहीं है। इसलिए उसको कहा जाता है कि दुर्गम पथ, बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही होशियारी से हमको चलना है इस पथ पर। इसलिए जो उनके अंदर की जो पुरानी चेतना है, जो पुराना सोच है, वो असुर जैसे होते हैं। उनके अंदर भी एक प्रबल भावना है। जैसे असुर लोग बहुत ही, मतलब असुर लोगों का विनाश करना कितना मुश्किल हो जाता है। यही सारी चीजों को पुराणों में दिखाया जाता है। बाद में तारकासुर हो, नरकासुर हो, रावण हो, कंस हो, मतलब उनको मारने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे देवी देवता इकट्ठा होकर तब जाके ये संभव हो सकता है। कोई एक देवता ने अगर ये काम नहीं कर पाते हैं,
सारी देवी देवताओं का सहयोग उसमें रहता है उसको नष्ट करने के लिए। इसीलिए इससे एक सीख है कि हमारे अंदर हम चाहे किसी एक देव भाव को, एक अच्छे भाव को हम अभिव्यक्त करते हैं, तो कोई बोलता है कि नहीं वो तो उसके अंदर तो वो बहुत दानशील है। दानशीलता एक बहुत अच्छा गुण है, लेकिन वह दानशीलता अपने आप में असुरों का विनाश नहीं कर सकता है। हमारे अंदर हमारी चेतना में जितने एडवर्स फोर्सेस होते हैं जो एकदम खड़े हो जाते हैं, हमको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो खत्म नहीं हो सकता है एक ही गुण की अभिव्यक्ति करने से। बहुत सारे गुणों को इकट्ठा होकर जब आगे बढ़ते हैं तब ये दैवी शक्ति हमारे अंदर प्रबल होती है, तब जाके संभव होता है। दुर्गा देवी जब महिषासुर का विनाश करते हैं तब क्या होता है, सारी देवी देवता इकट्ठा होकर उनको अपने अपने अस्त्र शस्त्र दे देते हैं, क्योंकि ये एक कलेक्टिव, इसीलिए कलेक्टिव साधना, श्री अरविंदो और श्री माता जी के योग में कलेक्टिव साधना को बहुत जोर दिया गया है। अब इंडिविजुअली कोई अपने आप में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअली कोई भी एडवर्स फोर्स को टैकल नहीं कर सकता है, उसमें बहुत सारों का योगदान रहना चाहिए, आवश्यक है। इसलिए सामूहिक चेतना में जब हारमोनियस बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर हारमोनियस एस्पिरेशन के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तब जाके यह जो पृथ्वी का रूपांतरण है ये संभव हो सकता है। तो इसलिए ये जो भाव है अपने आप जब अकेले इस मार्ग में चलकर जब टैकल करना चाहते हैं कि इस प्रकार के एडवर्स फोर्स को, तब अंतरात्मा से आह्वान तो आता है, लेकिन उस आह्वान को हम सुन नहीं पाते हैं। जैसे नचिकेता एक वॉइस है, इनर वॉइस है। नचिकेता को हम मानते हैं कि एक इनर वॉइस है, वो इनर वॉइस बहुत ही सूक्ष्म है, सटल है, तो वो आता रहता है वह इनर वॉइस, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं। सुनते भी है, उसको अनुसरण भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस प्रकार की प्यूरिटी, उस प्रकार के सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं होता है। तो जो कि वाजश्रवस के केस में भी हुआ है, क्योंकि नचिकेता एक बार नहीं 3 बार बोलता है, बार बार बोलता है, रिमाइंड करता है, पर वो कहाँ सुनने वाले हैं। तो वो तो अपने जो बाह्य चेतना है, जो पुरानी चेतना है, इस प्रकार जकड़ के रखा है कि वो सुन नहीं पाते हैं। वो भी विरोध करते हैं, विरोध करके इस प्रकार विरोध करते हैं कि हम अपने भी जो एकदम खुद का है, संतान तो हम उसको कहते हैं, जो हमारा खुद का एक्सटेंशन है, हमारी चेतना का विस्तार है, उसका भी नहीं सुनते हैं। तो हम खुद की जो अंतरात्मा की जो वाणी है, ज्यादातर हम खुद को ही डेंजर में डाल देते हैं, क्योंकि हम अंतरात्मा के साथ नहीं होते हैं। अंतरात्मा के साथ होकर अंतरात्मा की जो वाणी है, जो निर्देश है, जो उपदेश है, उसको जो संदेश आता है उसमें से हम उसको सुनकर भी नहीं सुनते हैं, प्रबल विरोध करते हैं। तो एक तरफ हमारे अंदर दैवी शक्ति है, एक तरफ हमारे अंदर आसुरी शक्ति, लेकिन वह आसुरी शक्ति बहुत प्रबल होते हैं। और दैवी शक्ति के बारे में हमारे अंतरात्मा जो है वो सचेतन है, लेकिन केवल सचेतन होने से भी यह काम नहीं होगा, उसके साथ साथ उसको एक प्रबल आकांक्षा होनी चाहिए। नहीं तो हमारे अंदर की जो एडवर्स फोर्सेस होते हैं वो एकदम जकड़ लेते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि तुमको मैं यम को देता हूं। फिर नचिकेता शांत हो जाते हैं। पहले तो थोड़ा ऐसे हिचकिचाते हैं कि ये क्या मेरे पिताजी ने बोल दिया, लेकिन जब शांत हो जाते हैं तब उद्दालक या वो वाजश्रवा जो है नचिकेता के पिताजी है, उनके मन में भी यही आता है, अरे मैंने ये क्या बोल दिया। यही पश्चाताप कहोड़ मुनि को भी हुआ साप देने के बाद, क्या अरे मैंने ये क्या कर दिया अपने बच्चों को, मैंने साप दे दिया अपने बच्चों को। उद्दालक के मन में भी यही भाव आता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। तो फिर वही नचिकेता बोलता है कि ठीक है, आपने बोल दिया है तो मैं तो आपके वचन का अनुसरण करूंगा। आप देखिए, तो आप शोक भी मत करो, आपने बोल दिया, क्योंकि एवरीवन हैज टू वॉक ऑन दिस पाथ वन डे। एक ना एक दिन सबको तो जाना ही पड़ेगा, नचिकेता बोलते हैं। तो why do you told me, so you yourself told me that मैं तुमको मृत्यु को देता हूं, तो अभी पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको भी एक दिन जाना पड़ेगा, सबको भी एक दिन जाना पड़ेगा।
तो मेरा टर्न आया है, आपने बोल दिया है मैं जाऊंगा, जैसे मेरे पीछे पीछे और भी कोई आएंगे, आज मैं प्रथम हूँ, मेरे पीछे जो आएंगे, जब कोई आएगा तो मैं मध्यम बन जाऊंगा, फिर जो आएंगे वो मध्यम बन जाएंगे, वो प्रथम बन जाएंगे। ये एक साइकिल है, सब आते जाते रहते हैं। पर आपने जब ये बोल दिया है तो मैं भी ये देखना चाहता हूं कि आज यम का मेरे से क्या काम है, क्या हासिल करना चाहते हैं यमराज मेरे से, मैं ये देखना चाहता हूं। तो इसलिए मुझे ये बोलकर जो आपने किया है अभी, आप पश्चाताप मत करो। वो अपने पिताजी को भी ये समझाते हैं, क्या कहकर समझाते हैं कि देखो, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमा किम स्वेद यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। वो कहता है कि यमराज का आज मेरे से क्या काम है, वो भी मुझे देखने दीजिए। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। वो अपने पिताजी को भी यही ज्ञान देकर जाते हैं, मतलब हमारे अंदर से यही वॉइस आता है हम हमेशा, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं। जैसे सस्य उगते हैं, ग्रेन्स उगते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर उगते हैं, ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, इसी प्रकार आत्मा जो है ये बार बार आता जाता रहता है, हर प्रकार के नए नए फॉर्म लेता रहता है। तो इसीलिए आप सोचो भी मत इसके बारे में, तो मुझे जाने दीजिए। और मुझे भी ये देखना है कि यमराज का मेरे से क्या काम है आज, किमद्य मया करिष्यति। तो ये कहकर फिर यमराज के पास वो नचिकेता जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब यमराज के पास जाते हैं तो यमराज घर में नहीं रहते। और एक मैं चीज बताना चाहता हूँ कि उपनिषदों में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है, वो जिस शैली से इस ब्रह्मज्ञान को हमें दिया गया है, वो प्रतीकात्मक होता है, सिंबलिक होता है। उस भाषा को हम उस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, जो टेक्स्ट जिस भाषा 5000 साल पुरानी भाषा है, फिर भी आज जीवित है। थोड़ा बहुत संस्कृत जानकर भी एक 5000 साल पुरानी भाषा को हम थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, लेकिन 5000 साल पहले इन्हीं शब्दों का अर्थ क्या था वो जानना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हम हमारे सीमित ज्ञान से हमारे पुराने शास्त्रों का व्याख्यान करते हैं, समझना चाहते हैं, इसलिए बहुत प्रकार के डिस्टोर्शन अवेलेबल होता है आजकल, क्योंकि हम एक मॉडर्निटी के लेंस में देखना चाहते हैं। लेकिन हमको करना क्या चाहिए, इस प्रकार की साधना करनी चाहिए कि हम वो 5000 साल पुराने युगों में चले जाते हैं, उस समय की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, उस समय के ऋषियों को देखते हैं, समाज को देखते हैं, उस समय के युग धर्म को जानते हैं, तब जाकर एक 5000 साल पुरानी इस प्रकार के चश्मा को पहनना पड़ेगा जो हमको 5000 साल पुराना समाज को ले जाएगा, उस युग को ले जाएगा, उस युग के धर्मों के बारे में बताएगा, भाषा के बारे में, संस्कृति के बारे में बताएगा। और तब जाकर उस समय जो टेक्स्ट आज हम पढ़ रहे हैं, उस समय क्या अर्थ रहा होगा, तब जाके हम उसके गहरी अर्थ को जान सकते हैं। और ये संभव भी है। इसीलिए हमारे मुनि ऋषि लोग और जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स है, उन लोगों ने हमको यही बताया है कि वेद को, उपनिषदों को या पुराने जितने शास्त्र है, उसको अगर अच्छी तरह से आप जानना चाहोगे तो इसके लिए साधना की आवश्यकता है। आप अपनी चेतना में जितना ऊपर उठोगे तो वो चेतना आपको उस समय को ले जाएगा, वो फिल्म पूरा दिखा देगा सामने कि ये हो रहा था, ये सच्चाई है। तो उस सच्चाई को एक ऋषि ही दूसरे ऋषि के वचन को समझ सकता है। ये ऋषि परंपरा इसीलिए है क्योंकि ऋषियों को वचन को जानने के लिए हमको ऋषि बनना पड़ेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जो है वो चीख चीख कर यही कहते थे कि आज हम भारतवर्ष में देखें तो सिर्फ ऋषि मुनियों का गुणगान होता है। वी सिंग द ग्लोरीज ऑफ द ऋषि, कि हमारे पास पाणिनि है, पतंजलि है, भरद्वाज है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, इतने सारे बड़े बड़े ऋषि लोग हैं। फिर हम उनको प्रणाम करते हैं,
फिर अपने रास्ते पर चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपमान है हमारे ऋषि परंपरा के लिए, क्योंकि हम सिर्फ उनका गुणगान करते हैं। अपमान इसीलिए है क्योंकि उनके दिए हुए मार्ग पर हम चलना नहीं चाहते हैं। जिन भावों ने, जिन क्वालिटीज ने, प्रॉपर्टीज ने एक साधारण व्यक्ति को अपनी साधारण चेतना से उठाकर भरद्वाज बना दिया था, वशिष्ठ बना दिया था, विश्वामित्र बना दिया था, एक क्षत्रिय ऋषि को, विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि बना दिया था, जिस मार्ग ने, जिस उपादान ने, जिस तत्व ने, उस तत्व को, उस गुण को हम हमारे भीतर अभिव्यक्त नहीं करना चाहते। तो इसलिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक है संस्कृत में जो कहता है कि पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा। इसका मतलब है सब लोग पुण्य का जो फल है, पुण्य कर्म करने से जो अच्छा फल मिलता है, वो फल को हर कोई चाहता है, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा। हर कोई पुण्य का फल चाहता है, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता है, पुण्य के मार्ग पर रहना नहीं चाहता है। पापस्य फलम नेच्छन्ति, पाप का जो फल होता है उसको कोई नहीं चाहता है, क्योंकि पाप का फल दुख होता है, वो कोई नहीं चाहता है। पापम कुर्वन्ति यत्नतः, लेकिन बहुत ही यत्न के साथ पाप करते जाते रहते हैं। पाप काम करने में आसान लगता है, लेकिन पाप का फल हम नहीं चाहते हैं। पुण्य करने में दिक्कत होती है, लेकिन पुण्य का ही फल चाहिए। ऐसे ही स्वार्थी होते हैं हम साधारण चेतना पर। तो ये मार्ग पे चलना, इसीलिए हम मुनि ऋषियों को सम्मान तो देते हैं, लेकिन मुनि ऋषियों का जो गुण है उसको हम हमारे अंदर व्यक्त करना नहीं चाहते हैं। जब हम व्यक्त करना नहीं चाहते हैं तो यही दशा में हम उपस्थित होते हैं कि हमारे अंतरात्मा की जो वाणी है, नचिकेता का जो चीख है, उसको हम नहीं सुन पाते हैं। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, राइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। तो ये है नचिकेता की यात्रा। तो वो कभी रुकता नहीं जब तक सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी सीख है कठोपनिषद की। ठीक है, मृत्यु के बारे में जो कहा गया है, मृत्यु के जो तत्व दिए गए हैं वो तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज है जिसको हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं, थोड़े बहुत वह बन सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी सीख है कि हम हमारे जीवन की जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है उसको हम सामने रखें और उसी के अनुगुण हम चले। और जब तक उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचे हैं, हमको नो स्टेपिंग बैक, पीछे मुड़कर हम देखेंगे भी नहीं जब तक हम सिद्धि को प्राप्त। नचिकेता की इस जर्नी को, नचिकेता के इस जीवन से हम ये एक सीख लेकर अगर उतार सकते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हमारे जीवन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी हम एक उदाहरण या एग्जाम्पल बन सकते। तो ये एक सीख है। फिर नचिकेता चलता है अपने रास्ते। और जैसे मैंने बताया कि ये एक प्रतीकात्मक कहानी है, और जिसमें हम देखते हैं कि यमराज के पास वो जब जाते हैं तो वो 3 दिन तक वहां पे बैठे रहता है, क्योंकि यमराज घर में नहीं रहता। नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या सचमुच यमराज कभी कभी घर में नहीं होते हैं? क्या यह संभव है कि यमराज अपने घर से गायब? कहाँ गए? उसका कोई निर्देश किसी भी टेक्स्ट में नहीं कि यमराज कहाँ गए थे और क्यों घर में नहीं रहते। नचिकेता को क्यों 3 दिन तक वहां पे इंतजार करना पड़ा? ये सारे अगर हम उस सिंबलिज्म को जानेंगे तब जाके हम इस कहानी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यम का अर्थ होता है गुरु, जो प्राचीन भाषा है, उपनिषदों की भाषा है। उपनिषदों की भाषा में यम का अर्थ होता है गुरु। गुरु का एक और भी शब्द भी प्रयोग होता था गुरु के लिए, मृत्यु। गुरु स्वयं ही मृत्यु है, गुरु स्वयं ही यम है। गॉड ऑफ डेथ गुरु स्वयं है। क्यों? क्योंकि वो हमारी सारी जो अज्ञानता है उसको वो डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। हमारी पुरानी चेतना को वो मृत्यु के पास में बांध लेते हैं। हमको
जो एनलाइटनमेंट है, प्रकाश है, सत्य की ओर ले चलते हैं। गुरु अपने ऊपर ये भार ले लेते हैं। इसीलिए गुरु को स्वयं मृत्यु कहा जाता है, मृत्युदेव कहा जाता है, यमराज कहा जाता है। यम का दूसरा अर्थ है कंट्रोल। यम मीन्स टू कंट्रोल। वो हमारे जीवन के गुरु जो है, जो सच्चे गुरु हैं, तो हमारे जीवन के सब कुछ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, स्वयं ही रेगुलेट करते हैं हमारे जीवन की गतिविधि को। हम उनके पकड़ में जब आ जाते हैं तब जाके हमारी सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसीलिए गुरुओं को भी यम कहा जाता है। तो ये जो नचिकेता की अभिप्सा लेकर ये उद्दालक, ये आरुणि, ये गौतम, ये वाजश्रवस जाते हैं गुरु के पास, यम के पास। ऐसा नहीं है कि नचिकेता गया था, ये सारे अपने अंदर की उस आस्पृहा और अभिप्सा को लेकर गुरु के पास पहुंचते हैं। देखिए, हमारी चेतना में ऐसी सारी चीजें रह जाती है जो हमको पूरी तरह से आगे बढ़ने नहीं देता है। तो ये जो 3 दिन तक रहने का अर्थ है, ये भी एक परीक्षा है। 3 दिन तक जब हम वास्तव में उपवास करते हैं, सिर्फ वही चीजों के बारे में सोचते हैं 3 दिन तक, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। इसका मतलब है खाना पीना तो एक मटेरियल, हम भात चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, शरीर के अन्नमय शरीर को कुछ मतलब बचाने के लिए जो कुछ करते हैं, वो भी एक प्रकार का खाना होता है। दूसरे खाना होता है कि हमारे सेंसेस को भी हम फीड करते रहे। तो उपवास का वास्तविक अर्थ होता है हम ये सारी चीजों को फीड करना बंद कर देते। जब कॉन्सेंट्रेटेडली 3 दिन तक कुछ हम नहीं खाते हैं, बस एक ही चीज पर केंद्रित रहते हैं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। पुरानी जो मुनि ऋषि लोग है, 3 दिन तक हम अगर इसको कर पाते हैं, उस कंसंट्रेशन के साथ हम कुछ खाना पीना नहीं देते हैं, फीड नहीं करते हैं हमारे सेंसेस को, बस जो ग्रेटर पर्पस है उसी को जानने के लिए जब हम केंद्रित हो जाता है, तब स्वयं गुरु हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। हमको जाने की जरूरत ही नहीं। तो गुरु खड़े होकर कहते हैं कि देखो, तुमने ये 3 दिन तक जो नहीं खाया नहीं पिया और यहीं बैठा, और तुम्हारे अंदर की ये जो प्रबल अभिप्सा है, तुमने डेविएशन तुम्हारे अंदर नहीं देखा, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। तुम मांगो, क्या है तुम्हारी आस्पृहा, क्या जानना चाहते? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी आस्पृहा अभिप्सा जो भी हो, एक तो उच्चतम आस्पृहा होती है। तो यहाँ पे हम नचिकेता की कहानी से ये भी सीखते हैं। नचिकेता सीधा सीधा यही नहीं पूछता है कि मुझे आप ये बता दीजिए कि हमारे ये मृत्यु के बाद क्या होता है। नचिकेता सीधा पूछता है क्या? ये नहीं, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, सबके साथ जुड़कर रहते हैं। हम ऐसे ही अकेले खुद को आइसोलेट करके इस प्रकार का सवाल नहीं कर सकते हैं कि बस मुझे ये बता दो मृत्यु का अर्थ क्या होता है, ये जानकर मेरा मोक्ष हो जाए। नचिकेता, हमारे आस्पृहा इस ब्रह्मांड के साथ भी हमको रहना है और किसी प्रकार रहना है, इसीलिए उसका पहला प्रश्न जो है इस संसार से ही शुरू होता है। बोलता है कि ठीक है, मेरे पिताजी जो है उन्होंने गलती से ये कह तो दी है, अपने गुस्से में कह दी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब वापस जाऊंगा मेरे पिताजी को उस प्रकार की स्थिति में मैं देखना नहीं चाहता। तो फिर वह ज्ञान प्राप्त करके, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त जो होता है उसको प्राप्त करके कहीं और नहीं रह जाने का है, तो उस ज्ञान के साथ हमको वापस आना है, इसी धरती में रहना है और इसी धरती में रहकर उस ज्ञान में स्थित होकर, उस चेतना में स्थित होकर हमें जीवन को संचालित करना है। तो इसीलिए कहता है कि मुझे पिताजी को देखना है, इसी प्रकार देखना है कि जो वो भी आनंद में रहे, क्योंकि हमारी पुरानी चेतना में वो जो ट्रांसफॉर्मेशन को हमें लाना है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में प्रतीकात्मक रूप में ये भी है कि मैं जब आज एक बड़े स्थिति में है, मेडिटेशन में करता हूँ, बस एक अच्छी स्थिति में हूँ, लेकिन मेडिटेशन से हम बाहर जब निकल आते हैं फिर वही सारी चीजें हमको पकड़ लेते हैं, गुस्सा आता है, लोभ आता है, ये आता है। नचिकेता का कहने का मतलब है कि मैं फिर वही पुरानी चेतना को फिर देखना नहीं चाहता हूँ। मैं जब इस स्थिति से जाऊंगा, ये सारी चीजें भी ट्रांसफॉर्म्ड होकर मेरे साथ दे आगे बढ़ने के लिए, फिर वो संसार में मुझे खींच कर न रख ले। इसलिए वो अपने पिताजी को, अपनी पुरानी चेतना को
इसी प्रकार देखना चाहता है, उस रूपांतरित स्थिति में देखना चाहता है कि मैं फिर से उसमें जकड़ ना जाऊं। तो ये कहता है कि अपने वर में फिर उस मार्ग में चलने के लिए उस अभिप्सा को प्रबल रखते हुए फिर भी मतलब डेविएशन ना होए, तो एक मार्ग को वो पूछता है दूसरे वर में। कहता है कि ये अग्नि क्या है, ये जो अभिप्सा की अग्नि मेरे अंदर प्रज्वलित है, उस अग्नि के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। वो फिर त्रिनचिकेता, 3 अग्नियों के बारे में वहां पे बात होती है। ये 3 क्यों है? ये 3 हमारी जो अपराध की जो नीची चेतना में जो मन प्राण शरीर रूपी हम 3 चेतना में रहते हैं कि सबके अंदर वह चेतना एक अग्नि के रूप में विद्यमान है। मन में भी एक रूप में विद्यमान है, प्राणिक सत्ता में भी एक रूप में विद्यमान है, हमारे शारीरिक चेतना में भी एक रूप में विद्यमान है। तो उस अग्नि को हम कैसे जाने और प्रज्वलित करके रखे और उसकी उपासना करें, उस उपासना का मार्ग वो दिखाते हैं। और अंत में ये भी कहते हैं कि नचिकेता, क्योंकि तुमने ये पूछा है, इसके बारे में जानना चाहा है, तो इस अग्नि को कुल मिलाकर मैं नचिकेता अग्नि के रूप नाम देता हूं। तो ये संसार में तुम्हारे ही नाम में जाना जाएगा और उस नचिकेता अग्नि को जो प्रज्वलित करके अपने अंदर रखेगा, वो ही अपने जर्नी में आगे निकलेगा और आगे जाएगा, उस सिद्धि को प्राप्त होएगा। पूछो अब तुम्हारा अंतिम प्रश्न क्या है? फिर नचिकेता के मन में यह आता है, पूछूं या न पूछूं? पूछना तो है ही, क्या इस प्रकार का उत्तर मुझे मिलेगा? क्योंकि प्रश्न ऐसा ही कुछ है। ये प्रश्न पूछने का अधिकार मुझे है या नहीं है, ये सब सोचकर फिर नचिकेता के अंदर जो प्रबल जिज्ञासा है, तो फिर वो पूछता है कि देखिए, मेरा अंतिम प्रश्न यही है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो यमराज तो अचंभित हो जाते हैं, फिर पूछते हैं कि नचिकेता, ये तुम मत पूछो, तुम संसार की सारी चीजें सारी संपदाओं, तुम इटर्नल होना चाहते हो, पूरा अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बनना चाहते हो, जो भी चाहते हो सुख संपदा, वो बोल दो, मैं तुमको बना दूंगा, लेकिन ये मत पूछो। मतलब यही है कि जब हम किसी भी प्रकार का एक उच्चतर संकल्प लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, यही सारी चीजें फिर हमारी चेतना में आविर्भाव होते हैं और हमको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। गुरु भी इस प्रकार का प्रलोभन दिखाते हैं हमें, हमारी परीक्षा लेने के लिए, कि इसमें कितनी सच्चाई है तुम्हारे अंदर की, ये जो प्रबल जिज्ञासा है, ये जो दिव्य संकल्प है। लेकिन नचिकेता हटता नहीं उसमें से, सबको इनकार करके, क्योंकि नचिकेता के अंदर वह श्रद्धा प्रतिष्ठापित है। यह श्रद्धा ही हमारे पूरे ये जो दृढ़ संकल्प श्रद्धा के साथ जब किया होता है, तो उसमें जब उस प्रकार की शुद्धता और श्रद्धा, उस प्रकार की निष्ठा होती है, तब गुरु स्वयं ही उस प्रकार के शिष्य को अपना लेते हैं। और सारे गुरु लोग जो है, सच्चे गुरु लोग जो है, इस प्रकार शिष्यों की खोज में भी रहते हैं, कहीं हमको एक सच्चा शिष्य भी मिल जाए। तो यही होता है जब नचिकेता कहता है, ये जब मैंने पहली बार पढ़ा था कठोपनिषद को, क्योंकि ये सारे कंटेम्पलेटिव होते हैं, जब ये पढ़ा था तो कई दिन तक मैं शांत हो गया था और मेरे आंखों में पहली बार जब पढ़ा था उसको टपक टपक करके आंसू निकले थे कि जब यम ने कहा, जब नचिकेता ने कहा कि आप जैसे गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे इस ज्ञान को देने के लिए, तब गुरु भी यही कहता है कि यमराज कहते हैं कि नचिकेता, तुम्हारे अंदर की श्रद्धा को मैंने देखा और आज मेरे मन में यही भी आता है कि नचिकेता, तुमने जैसे पूछा कि तुमको ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे, मैं भी यही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसे शिष्य मुझे कहाँ मिलेगा जिसको ये ज्ञान मैं दे सकता हूँ। आओ, मैं तुमको बताऊंगा, इस ज्ञान को पूरी तरह से मैं तुमको दूंगा, क्योंकि इस प्रकार के शिष्य ही विरल होते हैं जिसको हम ये ज्ञान दे सकते। यही बनना है। नचिकेता की जो कहानी है, इससे हमको यही एक बड़ा सीख मिलता है
क्या हम एक योग्य शिष्य, योग्य जिज्ञासु बन सकते हैं, जो कि हम ये उच्चतर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम अधिकारी बन जाते हैं, सच्चे पात्र बन जाते हैं। जब ये सच्चे पात्र हम बन जाते हैं ना, तो अपने आप वह ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है। ये जो इनफ्लक्स ऑफ द डिवाइन नॉलेज, द डिवाइन ग्रेस, ये इनफ्लक्स ऑफ द डिवाइन नॉलेज और डिवाइन ग्रेस को ही उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद का वास्तविक अर्थ यही होता है, जब ये एक स्ट्रीम की तरह, एक फ्लो की तरह ये जब बहने लगता है उच्चतर चेतना से हमारी साधारण चेतना के अंदर, तब जाके उपनिषद का जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, वो हमारे अंदर यह उपस्थित होता है, वो आ जाता है। तब उसी को कहा जाता है उपनिषद। उपनिषद शब्द का प्रयोग उपनिषदों में भी हुआ है, वेदों में भी हुआ है, इसी अर्थ में, जब when there is this great flow of that divine grace, divine truth into our consciousness, that is the true Upanishad। तब जाके यमराज जब नचिकेता सारे प्रलोभन को इनकार करके अपने ही दृढ़ संकल्प में स्थित होकर यही कहते हैं कि बस मुझे यही ज्ञान चाहिए, तब जाके वो ज्ञान को वो देते हैं। वो ज्ञान देकर उसको समझाते हैं कि देखो मृत्यु जो है, और इसी को हम देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता में बहुत ही सरल तरीके में इसको समझाया गया है। देखिए मृत्यु किसका होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। नचिकेता का प्रश्न है कि कोई कहता है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं, बस आदमी मर जाता है तो मर जाता है, फिर जन्म होता है, फिर मर जाता है। ये तो ध्रुव सत्य है ही। क्या उस ध्रुव सत्य को मानकर हम ऐसे ही चले जीवन में? ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये तो ध्रुव सत्य है। क्या हम इसी को ही स्वीकार करके कुछ न करें, बस यही मान ले कि आज हूं, मर तो जाऊंगा एक दिन। जैसे एक आदमी ने बोला कि वो हमारे परिवार के एक सज्जन ही है, जिन्होंने बोला कि मरना तो है ही एक दिन, अच्छी तरह से खाऊंगा पीऊंगा रहूंगा। रसगुल्ला में बहुत प्रीति है उनको, तो वो हर दिन 1 किलो 2 किलो रसगुल्ला खाते रहते। और यहाँ तक उन्होंने ये भी बोल दिया था कि मैं हाथ जोड़कर परिवार के सभी लोगों को यही बोलता हूँ कि मरते वक्त मेरे मुंह पे तुलसी का जल नहीं डालना, बस रसगुल्ला एक डाल देना, क्योंकि वो रसगुल्ला को खाकर ही मैं मरना चाहता हूँ। और यही हुआ सच्चाई। 52 वर्ष के वो व्यक्ति थे जिनको जाना पड़ा, बहुत ही सीवियर डायबिटीज हुए, लेकिन अंत तक वो रसगुल्ला खाते रहे। अपने जीवन में कोई और लक्ष्य नहीं था, बस रसगुल्ला खाना ही है उनको। ये क्या पागलपन था उनमें। शरीर को त्याग दिया, लेकिन उसी भाव में। ये तो चार्वाक दृष्टि से यही, ये एक चार्वाक दर्शन भी है। इसको भी मतलब सनातन धर्म का ये ब्यूटी भी है, इसको भी अपने दर्शन में समा लिया। बोला ये भी एक सत्य है, ये भी एक चीज है जिसको ये संसार में हम देखते हैं। क्या बोलते हैं कि यावत जीवित सुखम तिष्ठति ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्। जब तक वो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, जो एक बार जल गया फिर वो आएगा नहीं आएगा, इसमें क्या सच्चाई है, कौन जानता है उसको। खाओ पियो मस्त रहो, जैसे जीना चाहते हो वही जियो। तो ये भी एक सच्चाई है जिसको समा लिया है, लेकिन उससे हमारे आत्मा का कोई उत्थान नहीं होता है, वो ब्रह्म विद्या को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मृत्यु क्या है, बोले ये भी कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मृत्यु के बाद फिर हम आ जाते हैं। ये सच्चाई क्या है, कहाँ जाते हैं, क्या आता है? तो जब हमारा मृत्यु होता है तो हमारे शरीर कहाँ जाता है, मन कहाँ जाता है, प्राण कहाँ जाता है, कौन सा ऐसा, क्या ऐसा कोई अंश है जो एकदम अमर होकर रह जाता है, वह कौन सी चीज है? इस प्रकार के ज्ञान को मुझे दे। ऐसे ज्ञान तो विशाल है, सारांश में यही कहा गया है कि जब मरता है तो यही शरीर मर जाता है, शरीर फिर 5 महाभूत में विलीन हो जाता है, प्राण जो है अपनी प्राणिक सत्ता में लीन हो जाता है, मन जो है एक मानसिक सत्ता है, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो मेंटल वर्ल्ड है, तो उसी में वो समा जाता है। लेकिन आत्मा जो है वो ना तो मरता है ना किसी को मारता है, तो वो अखंड है, अमर है, अविनाशी है, तो वो ऐसे ही रहता है जैसे हमेशा है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर जब
उसकी जर्नी के लिए, उसको एक आगे बढ़ने के लिए अपनी एवोल्यूशनरी जर्नी में जब फिर एक उचित पात्र उसको मिल जाता है, जहां तक जर्नी हुआ है, जितना विकास हुआ है, उतने विकास को फिर आगे बढ़ाने के लिए, आगे विकसित होने के लिए जो सत पात्र चाहिए, उस प्रकार के पात्र जब मिल जाता है तो वो फिर से जन्म होता है। तो यही होता है जो कॉन्शियसली अपने एवोल्यूशनरी जर्नी में जाते हैं। जो अनकॉन्शियसली जाते हैं, दे आर थ्रोन इनटू द सेम साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द हायर प्रिंसिपल्स। और जो सचेतन होकर अपने रास्ते में जाना चाहते हैं, वो एकदम कॉन्शियस चॉइस आ जाता है उसमें, कॉन्शियसली वो चूज करते हैं अपने जो किस शरीर को धारण करेंगे जिससे कि वो आगे वो बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के जो तत्व है, इसी तत्व को कठोपनिषद में हम देखते हैं। और मृत्यु के बारे में यही जो चीज है कि ये जो अमरत्व है, अमरत्व का अर्थ नहीं है कि हम शरीर से अमर बन जाएं। श्री अरविंद को किसी ने पूछा था ये बात, बोले कि ये अमरत्व, ये बॉडी को हम इमोर्टल बना देंगे, क्या यही है सुप्रामेंटलाइजेशन का मतलब है कि बॉडी सुप्रामेंटलाइज्ड हो जाएगा और एक ही बॉडी में हम हजार हजार साल तक रहेंगे? पर श्री अरविंद बोले कि इट्स सो बोरिंग टू लिव इन द सेम बॉडी, जब हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम उसको बदला सकते हैं, नए रूप में ला सकते हैं, तो व्हाई टू स्टिक टू वन सिंगल फॉर्म? तो इसमें तो आनंद ही लेना चाहिए कि चलो हमारे पास ये फैसिलिटी है। हमको अगर कोई बोले कि तुम्हारे पास ये चॉइस है कि तुम इस घर से जाकर दूसरे एक नए घर में भी रह सकते हो कि जो इससे भी अच्छा है, उससे भी अच्छा है, हमारे पास 100 ऑप्शंस है और वो फ्रीली मिलता है, हम क्यों एक फॉर्म में स्टिक करके रहें? तो यही है कि हमारी प्रॉब्लम ये पूरी मानव जाति की समस्या ये है कि कोई मरना नहीं चाहता है। देखो, ये एक समस्या है, मृत्यु का भय इसीलिए है, चाहे कितना भी कष्ट हो, कितना भी कुछ हो, बोलो भाई मुझे जीने दो, मुझे जीने दो बस और कुछ दिन, मैं मरना नहीं चाहता हूँ प्रभु। दूसरे लोग भी प्रेयर करते हैं उसके लिए। क्यों नहीं मरना चाहते हैं हम? क्या करते हैं? क्या हमारा योगदान है इस जगत के मंगल के लिए? ये नहीं पूछते हैं हम, बस हम जीना चाहते हैं, हम दुख भोगना नहीं चाहते। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास एक ऐसा सुंदर तत्व है जिस तत्व को लेकर हम कई सुंदर जीवन जी सकते हैं अपनी आत्मा की जो प्रगति के पथ पर चलते हुए। इसीलिए कठोपनिषद का एक जो बहुत बड़ा देन है, तो इसमें हमको ये कहा गया है श्रेयश्च प्रेयश्च। एक तो श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है। नचिकेता को समझाते हुए यमराज बोलते हैं कि जो प्रेय मार्ग है, द पाथ ऑफ द प्लेजेंट, श्रेय मार्ग है द पाथ ऑफ द गुड। लेकिन बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस, because of our clinging to this outer form, we enjoy the path of prayers, thinking that this is the real path. इसी में बड़ा ही आनंद आता है, चलना भी आसान होता है। श्रेयस का पथ जो है, जो सत्य पंथा है, जो ऋत पंथा है, जो स्वस्ति पंथा है, तो उस मार्ग में पहले पहले चलना तो कठिन है। फिर गीता उसी को समझाते हुए कहती है कि परिणामे अमृतोपमम, कि चलो इसका परिणाम जो है, कॉन्सिक्वेंस जो है, वो आनंद ही आनंद है। लेकिन प्रेयस के मार्ग में तुम चलोगे, परिणामी विषोपमम, उसका परिणाम जो है विष है, लेकिन चॉइस तुम्हारा ही है। इसीलिए किसी भी प्रकार हमारे शास्त्रों को हम देखेंगे, ये भागवत नियम नहीं है किसी के ऊपर किसी चीज को आरोप करना, इम्पोज करना। ये डिवाइन लॉ है, डिवाइन रूल है। तो वो चॉइस, जैसे अर्जुन को भी ये चॉइस दिया गया था, पूरा का पूरा ज्ञान देकर श्री कृष्ण ने बोला कि यथेच्छसि तथा कुरु, तुम जो चाहो वो करो, ज्ञान तो मैंने तुमको दे दिया, लेकिन चॉइस तुम्हारा है किस मार्ग पर चलोगे। तो ये चॉइस आज ये चैलेंज हम सबके पास है। आज जो हम दुनिया में जो हो रहा है, इसको हम सामने देखते हैं, और ये बंद नहीं होने वाला है, ये चलता ही रहेगा। लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए मार्ग एक ही है, कोई वैक्सीनेशन, किसी भी प्रकार की दवाई इसको रोक नहीं पाएगा। मार्ग एक ही है, जब हम श्रेयस के मार्ग पर चलेंगे, मिलकर चलेंगे, सामूहिक रूप में, हार्मोनियसली, उसी को ध्यान में रखते हुए कि हमको इस परंपरा में जो हमको ऋषि लोगों ने दिया है, इस श्रेयस के मार्ग पर चलेंगे, तब जाके एक साथ मिलकर इस समस्या को हम मिटा सकते हैं और आनंद में रह सकते हैं। जो इस मार्ग में चलने के लिए तैयार नहीं है,
और रिजेक्ट करता है, इनकार करता है, बस वो लोग प्रेयस में मार्ग पे चलकर परिणाम विश्वोपम उस विश्वमय स्थिति में ही उपस्थित होंगे। और जो इस श्रेयस के मार्ग पर चलेंगे उस आनंदमय लोगों के ही प्राप्त करेंगे, इस संसार में रहकर भी उस अमरत्व को वो उपभोग करेंगे। ये है उपनिषद का जो संदेश है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जो भी प्रश्न है आपके मन में आप पूछ सकते हैं। It was such an insightful talk, so informative, and I saw some of you really writing. Tenali, I can see the happiness on your face. I think you really enjoyed, right? क्या आप दूसरे प्रश्न को पुनः बता सकते हैं, क्या पूछा था नचिकेता जी ने? सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा कि जो अग्नि तत्व है, जिस अग्नि के बारे में बात करते हैं, ये अग्नि जो है, अग्नि का एक नाम है जातवेदस। मतलब जातवेदस का मतलब यही है, हमारे ऊपर 7 चेतनाएं, 7 वर्ल्ड है, नीचे भी 7 है। मतलब पूरी जो इनकॉन्शियंट वर्ल्ड है वहां से लेकर सुपर कॉन्शियंट वर्ल्ड तक, इसलिए उसको चतुर्दश भुवन कहा जाता है। तो ये चतुर्दश भुवन में अग्नि सर्वत्र विद्यमान है। तो ये अग्नि की उपासना इसलिए हमारी संस्कृति में, आध्यात्मिक परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस अग्नि को, जैसे नचिकेता ने पूछा कि जो अग्नि के बारे में हम बात करते हैं, जिस अग्नि की उपासना से हम उस मार्ग पर चल सकते हैं, सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, उस अग्नि के बारे में आप मुझे बताइए। तो 3 प्रकार की, एक तो है कि एक रिचुअलिस्टिक जो रिचुअल हम करेंगे, कितने ब्रिक्स और वेदी का हम कैसे निर्माण करेंगे, अग्नि का प्रज्वलन कैसे करेंगे, मतलब उस पर भी एक इंगित है, वहां पे इंडिकेशन है। उसके साथ साथ जो अंतर अग्नि है, तो उस पर भी वो प्रतीकात्मक रूप में यही दिखा गया है कि हमारे जो त्रिनचिकेता अग्नि, वो बोलते हैं कि 3 प्रकार की जो अग्नि है उसकी उपासना हम करेंगे, शारीरिक, मानसिक और प्राणिक सत्ता पर। ये जो 3 अग्नि है, तो उस 3 अग्नि की उपासना हम कैसे करेंगे, और ये अग्नि है क्या चीज। तो ये था दूसरा प्रश्न। तो उसके बारे में फिर समझाते हुए वो उसको एक ही नाम देते हैं कि ये नचिकेता अग्नि है। और ये उपनिषद का यही जो सारांश है कि जो अभिप्सा अस्पृहा रूपक जो अग्नि है, उसी को हम नचिकेता अग्नि कहते हैं। कि एक नचिकेता को हम हर कोई कैरी करता है, तो उस नचिकेता के अग्नि, अस्पृहा और अभिप्सा को दृढ़ रूप से लेकर कोई आगे बढ़ता है तो सिद्धि को अवश्य ही प्राप्त। तो संपत जी, अग्नि के बारे में क्या जवाब दिया यमराज जी ने? एक हम रिचुअलिस्टिक दृष्टि से देखते हैं तो उन्होंने यही बोले कि कितने वृक्ष है, ये है, वो है, उस अग्नि को कैसे प्रज्वलित करेंगे, तो वो बताया है। और दूसरा है कि ये जो अंतर अग्नि है, इस अंतर अग्नि को प्रज्वलित करके रखेंगे, अभिप्सा और अस्पृहा रूपक अग्नि को। और जो मेन चीज है उस चीज अग्नि को ये नचिकेता अग्नि के रूप में सब जानेंगे और उसी की उपासना करेंगे, जिसकी उपासना से हम जो अंतिम स्थिति है, जो सिद्धि है, उस तक प्राप्त करेंगे, ये बताया। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि जो हमारे अंदर इनमोस्ट सोल है, उसका उस एस्पिरेशन को अलाइव रखें और उसको कंटिन्यूसली उसकी एस्पिरेशन को अलाइव रखने के लिए उसको याद रखें, इनमोस्ट सोल को रिमेम्बरेंस में रखें, हर समय सब कुछ उनको ऑफर करें और अपने आउटर वर्क में उनको बाहर इनवाइट करें। ठीक, राइट? ठीक। एक अग्नि वो होती है जो हम अपने अंदर प्रज्वलित रख सकते हैं जिससे कि हम सफल हो सकें जीवन में। तो सर, उस अग्नि को प्रज्वलित रखने का कोई मतलब मेथड क्या है? मेथड तो एक है कि देखो, एक है कि हम हमारे अंदर जो अग्नि तत्व है उसके बारे में हम सचेतन हैं। ये सचेतनता ही फर्स्ट स्टेप है। वी मस्ट ग्रो अवेयर ऑफ दैट, द प्रेजेंस ऑफ दैट अग्नि इन अस। तो ये सचेतनता के साथ हम जितना इनवर्ड बनेंगे, जितना अंतर्मुखी हम होंगे, और जो वास्तविक फ्लेम है हमारे अंदर, जो डिवाइन स्पार्क है, जो इनमोस्ट बीइंग है, अंतरात्मा की जो अग्नि है, उसके बारे में हम जब बहुत ही सचेतन होंगे, उसका जितना करीब होंगे, तो उससे वह जो अग्नि है, वो जैसा कहा जाता है श्री अरविंद के योग में, उसको कहते हैं कि साइकिक इमर्जेंस है। वो साइकिक अंतरात्मा जो है वो आगे आकर हमको परिचालित करेगा, वो हमारा लीडर बनेगा।
इसीलिए अग्नि को कहा जाता है कि वो अग्नि ही है, पुरोहित है, वो स्वयं ही हमारा लीडर है, लीडर होना चाहिए। तो जर्नी आफ्टर डेथ के बारे में क्या बताया यमराज जी ने? ये भी तो एक प्रश्न था ना नचिकेता का। नचिकेता का वही प्रश्न है, जैसे कि वही जो अविनाशी तत्व है और जो विनाशी तत्व है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिसको मतलब गीता में ये जो मृत्यु तत्व के बारे में कठोपनिषद में जो बताया गया है, उसी को एक बहुत ही सिंपल वे में इस तात्विक जो तत्वपरक अर्थ है, इसको और सरल तरीके से समझाया गया है कि जो अविनाशी तत्व है उसी के ऊपर हम अगर केंद्रित होते हैं तो हमको ये मृत्यु के जो भय है और मृत्यु के जो तत्व है उसमें हम बांध कर नहीं रह जाते हैं। तो जो ज्यादातर हम जो विनाशी तत्व है उसी पर हम केंद्रित हो जाते हैं, तो जो भय पैदा करता है, तो उस अविनाशी तत्व के बारे में हम सचेतन हुए और उसी को अविनाशी मानकर हम मृत्यु के प्रति इतना भयभीत न हुए और ये जाने, ये सच्चाई को जाने कि ये आता जाता रहता है। जब विनाश होता है, शरीर का जो लय होता है पंच महाभूतों में, और फिर जो प्राण का लय होता है प्राणिक चेतना में, फिर मन का लय होता है मानसिक चेतना में, लेकिन आत्मा जो है अपनी जो जगत है, जो आत्मिक जगत है, उसी पर स्थित होकर अगर ये कॉन्शियस सोल है तो फिर वो आगे मतलब हर प्रकार के कमेंटरीज हम देखेंगे तो इसी प्रकार समझाया गया है कि जो विकास की पथ में जो चलकर आगे बढ़ता है सचेतनता के रूप में, वह फिर अपने पात्र को फिर अगले जन्म में किसी प्रकार के शरीर को धारण करेगा, वो अपनी चॉइस के हिसाब से लेके फिर अपने को आगे बढ़ाता है। नहीं तो जो अपने ऐसे ही साधारण चेतना में स्थित होकर रहता है कि he is thrown again and again to the same ordinary beings, he becomes bound by the cycle of birth and death। तो मतलब कि जब उन्होंने ये तीसरा सवाल पूछा तो उन्होंने उनको सोल के बारे में बताया कि आपको सोल की कॉन्शियस है, जैसे कि कैसे वहां पे सोल के बारे में चर्चा है, इंद्रियों के बारे में चर्चा है, शरीर के बारे में चर्चा है, मन के बारे में चर्चा है। जैसे हम वही सारी चीजें देखते हैं गीता में भी है, जैसे वहां पे वो जो कहा गया है कि आत्मानम रथिनम विद्धि, शरीरम रथ में भी शरीर को एक रथ की संज्ञा दी गई है। तो रथ के साथ तुलना की गई है कि जैसे रथ में एक सारथी होती है और जो कौन है सारथी, कौन है वो रथ को खींचने वाला जो रेन है, और रथ क्या है, तो ये सारी चीज है। जो रथ पर कौन बैठा है, रथ का मालिक कौन है, तो फिर वो इंद्रियां जो है वो घोड़े हैं। तो ये सारे जो उपमा मतलब मेटाफोरिकली इसको सारी चीजों के बारे में समझाया गया है कि मन, प्राण, इंद्रिय, शरीर और फिर आत्मा, और इसको फिर हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। फिर वो वहीं पे यही बोलते हैं ना कि यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे। तो फिर यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथे। जैसे क्या होता है कि जब हम असचेतन होते हैं हमारे बारे में, तो हमारा मन केंद्रित नहीं हो पाता है। तो इसे ये एक वाइल्ड हॉर्स जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, तो इसी प्रकार हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हमारे मन इंद्रिय जहां हमको ले जाते हैं। लेकिन जो वही मन पर केंद्रित होता है, मन को अपने वश में ले आता है, सदस्वा इव, जैसे एक उत्तम सारथी और ट्रेन्ड हॉर्सेस को लेकर अपने रथ को लक्ष्य तक प्राप्ति के लिए प्रयोग करता है, उसी प्रकार वह साधक जिसका मन, इंद्रिय, प्राण सब कुछ वश में है, तो वो उस सिद्धि तक पहुंच सकता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे यही चीजों को दिया गया है कि अविज्ञानवान और विज्ञानवान हमको बनना क्या है कि बहुत ही सचेतन बनना है, जिस सचेतनता से हम हमारे अंदर हमारी चेतना में वह ज्ञान का उदय होगा जो हमको ये सब चीजों को अपने कंट्रोल में लाने में हमारा सहायक बनेगा। क्योंकि वो अपना कंट्रोलर बनना, स्वराट बनना ही सर्वोत्तम सिद्धि है। स्वराट बनकर ही फिर हम साम्राज्य बना सकते हैं। ये आध्यात्मिक साम्राज्य में साम्राज्य बनाकर वहां पे हम अधिपति बन सकते हैं। आध्यात्मिक जगत के हम राजा बन सकते हैं, हमारे खुद के राजा हम खुद बन सकते हैं। तो ये स्वराट बनना, सब कुछ को अपने वश में रखना और
ये संभव हो सकता है तभी जब हम उस जो आत्म तत्व के बारे में हम सचेतन हो सकते हैं। वही विज्ञानवान बनता है और वो जानता है कि ये इंद्रियों के परे सारे अर्थ है, उसके परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे जो आत्मा है। तो उस आत्मा के परे फिर जो परम अव्यक्त है, फिर जो पुरुष है, वहां तक हम पहुंचे तो वो परम पुरुष को प्राप्त करके ही हम सारे संसारों के बंधन से, जो भी हमारे लिमिटेशंस है, जो हमको मुक्ति का भाव नहीं देता है और मुक्ति की ओर, संपूर्ण मुक्ति की ओर, संपूर्ण विकसित चेतना की ओर पहुंचा नहीं पाता है, तब ये संभव हो सकता है कि जब हम उस पुरुष तक हम पहुंच जाते हैं। दैट्स व्हाई इसे पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो उससे परे कुछ नहीं होता है, वही परम गति है। तो वह जो पुरुष है, फिर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि वो उस एकदम जगत से परे है, मतलब हमसे दूर है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। ये हमारे अंदर भी छिपा हुआ रहता है, उस छिपा हुआ गूढ़ सर्वेषु भूतेषु, खाली मेरे अंदर नहीं, सारे सब चीजों के अंदर ये छुपा हुआ रहता है। और सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्मदर्शी बनना चाहता है सचेतन बनकर, उस सटल मोस्ट विजन के माध्यम से हम उसका दर्शन कर पाएंगे। पर वो सूक्ष्म बनना, सूक्ष्मदर्शी बनना, दृष्टा बनना ही हमारा कर्तव्य है। जो श्रेय के मार्ग पर चलते हैं वही स्वयं दृष्टा बन पाते हैं, वो साक्षात दर्शन कर पाते हैं और उसी से परिचालित हो पाते हैं। यही कहकर फिर वो कहते हैं कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ते। तो इसीलिए उठो, खड़े हो जाओ और जिन लोगों की यह अनुभूति है उस प्रकार के लोगों को प्राप्त करो, उसके पास जाओ, बैठो, सुनो और उसके मार्ग पर रहकर फिर उस दुर्गम पथ में चल पड़ो। तब जाके ये जो मृत्यु का जो परम ज्ञान है और मृत्यु के बारे में जितने भी शंकाएं हैं, वो शंकाओं से तुम मुक्त हो सकते हो और पूरी तरह उसको जान सकते। तो ये है ज्ञान। उसको कहकर फिर वो कहते हैं कि नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। तो यही जो उपाख्यान है नचिकेता का, जिसने मृत्यु ने स्वयं कहा है, जो परम गुरु ने कहा है, जो सनातन तत्व है, उसी को सुनकर, उसी को कहकर कोई मेधावी वही होता है जो अपने अंदर उस ज्ञान को स्थिर कर लेता है, अपने संकल्प से नहीं हटता है। तो वही ब्रह्मलोके महीयते, मतलब वही ही ब्रह्मलोक में अपने चेतना को विस्तार करके उस ब्रह्मलोक का हिस्सा बन सकता है, वही खुद को ग्लोरीफाई कर सकता है, वही खुद को पा सकता है। तो यह इमं परमं गुह्यं श्रावयति ब्रह्म संसति प्रयतः साध काले वा तदा अनंताय कल्पते तदा अनंत्याय कल्पते। तो वही व्यक्ति अनंत्य को और जो विशाल है उसी को प्राप्त कर सकता है। उस विशाल चेतना में स्थित होकर फिर वो अपने जीवन को एक सार्थक रूप में जी सकता है। तो ये सारांश है कठोपनिषद। मतलब तो अगर हम इसको ऐसे समझें, क्योंकि जैसे हम स्कूल में जिस तरीके से बात करते हैं कि ही टोल्ड हिम अबाउट द सोल, कि आपको सोल को इवॉल्व करना है और आपको अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू इवॉल्व दैट और आप अपनी प्रैक्टिसेस से, पूरी अवेयरनेस से, ऐसे इस तरीके की चीजों से जुड़ के इतने अवेयर हो जाए और सोल को इतना इवॉल्व कर लें दैट इवेंचुअली वो जो अव्यक्त स्वरूप है उसमें आप लीन हो जाएंगे। मृत्यु के बाद आपके साथ ये होगा, बजाय इसके कि आप मृत्यु से भय रखें, मृत्यु से डरने की बजाय आप उसके ऊपर कार्य करें और उस भयभीत ना हो, तब तक आप इतना कुछ कर लें अपने साथ में कि आपका सोल अव्यक्त परमात्मा में लीन हो जाए और आप उस साइकिल से हट जाए। मतलब लेकिन देखिए कठोपनिषद में एक्चुअली बहुत सारी ये तात्विक बात है, मुझे पता नहीं कि हम बच्चों के सामने कितना वो ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो एक लीन हो जाना उसमें, फिर उसके बाद
क्या है वो बाद की बातें वहां नहीं किए जाती, तो वो लीन तक ही जाते हैं। तो इसीलिए जो वास्तविक समाधान है नचिकेता के प्रश्न का, तो वो समाधान हमको उपनिषद में जहां तक दिया गया है वो पूरा का पूरा समाधान तो नहीं मिला है। तो एक आंशिक समाधान उसमें है कि आंशिक एक उत्तर हमको दिया गया है कि हम वो करें ताकि हम वो ब्रह्मलीन हो जाए, वो अनंत में हम लीन हो जाए। जैसे बुद्धिस्ट निर्वाण है या हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज है, लीन हो जाना, उस अनंत में विलीन हो जाना। लेकिन उसके बाद क्या है इसका उत्तर नहीं दिया गया, नहीं दिया। हाँ, तो वो उसका पूरा का पूरा समाधान जो है वो तो हमको श्री अरविंद में ही मिलेगा। तो इसलिए श्री अरविंद के पूर्ण योग में जो पूर्णता है तो उसको हम यहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्री अरविंदों को पढ़ना बहुत जरूरी है कि जहाँ जो चीजें वहां पे आगे को नहीं कही गई है, ये सारी चीजों को उन्होंने विस्तार रूप में यही कहा है कि ताकि हम ये भी समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या है। Children, if I look at this practical aspect, you tell me any two things that you learn from Nachiketa's story. It's a beautiful, बहुत सारी बातें संपत जी ने उसके साथ में जोड़ी हैं। So any two things, कोई दो चीजें जो तुमको लगता है कि नचिकेता की जीवन से सीखी जा सकती हैं, उसके सवालों से, उसकी उत्कंठा से। Ma'am, first of all, I think that from the beautiful story of Nachiketa and Yamraj, ma'am, first thing that we can like inherit is that humility. Ma'am, like we should not just let any anger on us go in vain. If Nachiketa's father said that मैं तुमको यम को देता हूँ, so he was humble enough to accept that, and he thought that okay, my father has said something, so he must not have been totally like out of mind. He must have thought something and he is not totally wrong. That is why he accepted his father's vachan and then he went to Yamraj to seek knowledge. And ma'am, second thing that I think we can inherit is that the aspiration to burning flame, the ignited flame to learn. Ma'am, he had to wait for 3 days outside Yamraj's like court, but he did not go. And he still was totally determined to ask the same questions to Yamraj and seek answers. Ma'am, that is what we can learn, to never give up seeking answers, because till we do not seek them, we will not be able to evolve. Okay, संपत जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है, it's a beautiful learning. मैम, मुझको लगता है कि जो सार्थक ने कहा, मैं बस उसी चीज को कुछ और दूसरे शब्दों में बोलूंगी। दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय ये पहली चीज जो मुझको लगा कि विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इवॉल्व। एंड सेकेंडली व्हाट आई थिंक इज मृत्यु, जो मृत्यु पर जानने को मिला। मैम, आई ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट इट। मैंने कुछ अपने विचारों से भी कई चीजें लिखी। आज सुनने के बाद मैम कुछ ऐसे निष्कर्ष निकल के आता है, मिलता है कि मृत्यु कोई बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज नहीं है कि जिससे हमें भयभीत होना पड़े। मृत्यु ऐसी चीज नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि मतलब आई हैव लिसन्ड मेनी टॉक्स आल्सो अबाउट इट ऑन इट कि मृत्यु, अरे क्यों बोलते हो ऐसा, ये शब्द मत बोला करो। तो मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम मतलब सुनते ही हम लोग कुछ डर जैसा ऐसा लगने लगे। मृत्यु, ये जो शरीर है, हम मृत्यु को भयभीत तब कह सकते हैं कि जब हम उस परम तत्व को ना जान करके इस शरीर को एक ग्रेसफुलनेस के साथ ना रखकर, मतलब मृत्यु क्या है, इस शरीर को जहां से मिला है उसको वापस दे देना। पंच तत्व का है, पंच तत्व में लीन हो जाना, पंच तत्व को दे देना। लेकिन जो लोग अब उस पंच तत्व से ना जुड़ करके इस प्रकृति के साथ एक सिंक, एक उसके एक नियम, एक सिंक में नहीं रह करके उससे भिन्न अपने ही जीवन में लीन रहते हैं, तो उनके लिए मृत्यु एक भय की चीज हो सकती है। लेकिन जो उसके साथ एक सिंक में है, विच हु आर इन सिंक विद द नेचर, उसके लिए तो ये एक ग्रेसफुल मोमेंट होगा। मैम, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग एंड मैम दिस इज, आई एम वेरी जॉयफुल अबाउट इट कि ये एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट है टू लिव, to what should I say, to give gratitude to God, this nature. संपत जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो बस इन बच्चों को सुन के यही मेरा मन में आता है, शायद हम लोगों को भी इस उम्र में इस प्रकार का थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता कि हम उस समय से कुछ सीखते। जयपुरिया should be proud of these children. ठीक कह रहे हैं आप कृणाली, what you've said is so beautiful. After yesterday's first and second sessions, this is what I've been thinking, that eventually if we start working at ourselves, if we really understand soul consciousness, then we can understand that we
I mean, if we reach the highest stage of evolution, then in any case we will not be reborn. And जैसे अभी नचिकेता की स्टोरी हुई, तो हम तो लीन हो गए उसमें, बात खत्म हो गई. और अगर हमने उस लेवल तक काम नहीं किया, so we have to keep this thought in mind that I don't have to come back. I have to go to the ultimate source. I don't have to come back. So then I keep evolving myself, and I have to think that I don't have too much time to do this, because one day my body is going to go. So what you are saying is that there has to be some kind of impatience to work upon yourself, because you've got a limited time to work upon yourself. So death will give you, when you reach that stage of death, then it is that your work at working at your soul is gone. You've lost that opportunity. So life is one opportunity, and death is the end of that opportunity. That's it. Beyond that, it is nothing. But हाँ, जब हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ में एसोसिएटेड होते हैं, हम अपने लिए ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ होते हैं उनके साथ का कनेक्शन तो फिजिकल बॉडी से होता है, और वो जो करते हैं और उनकी हैबिट से होता है. तो वहां उस लॉस के लिए आप सैड हो सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, उनको आप एज अ सोल नहीं सोच पाते हैं. द प्रॉब्लम परहैप्स लाइज हियर. Perhaps the problem is not with your own soul, but with what is going to happen to those. और यही वो वाला ज्ञान है कि वो जो गीता में कहा जाता है कि आप आसक्त मत होइए किसी भी कर्म पर, प्रेम भी करिए. It's a little complicated. जो नचिकेता जी थे, उनका तीसरा प्रश्न यमराज उत्तर वो देना इसलिए नहीं झिझक इसलिए रहे थे क्योंकि वो क्या प्रश्न आत्मा संबंधी था. क्यों वो एक दो बार उन्होंने मना किया? क्योंकि एक गुरु को वही, जैसे मैंने बताया कि एक शिष्य की जो जिज्ञासा है वो उसमें कितनी प्रबलता है, कितनी शुद्धता है, उसको तो वो परखते ही. नचिकेता के केस में तो यमराज स्वयं he had to bow down and to see the amount of intensity and purity in his aspiration. और वो श्रद्धा को दिख पाए, श्रद्धा आविवेश. जब हमारे अंदर जब श्रद्धा प्रतिष्ठित हो जाती है तब हम पात्र बन जाते हैं. तब तक वो श्रद्धा को परखना चाहते थे कि कितनी इंटेंसिटी के साथ है, कितनी शुद्धता है उस. तब जाके वो कहते हैं ना कि मुझे कहाँ मिलेगा तुम्हारे जैसा शिष्य. Ma'am, I have observed that in life people aren't only afraid of what would happen to them if they like die, but what I've also observed is that many people are also afraid, and they also fear what will happen to their loved ones and the people who care for them after they die. So ma'am, I would like to know how we could actually get rid of this fear and know that after life, this life is over, like the people we love, the people we care for, like they would. How do we remove that fear? Got your point. That, as I said, you don't fear about yourself because you feel, okay, if I'm working at myself, I'll keep working, and one day I'm gone. After that, whatever is left behind is all right. It also depends, a lot depends. Perhaps it's all economically driven also to a certain extent. People fear their own death because they feel, what will happen of my family when I go? How will they manage? And secondly, if you lose somebody, of course, then there is a lot of sentiment. But probably Sampadananji will throw some light on it. How one can get rid of this, because we think of the consequences and then we become attached to so many things. The basic question with regard to this, the basic thing that we should know is that where from the fear is coming. What is the root of fear? What do you think the root of fear is? Anyone? Moh, Maya. Maya? Attachment. But वो this is where it comes from. अज्ञान. वो कहाँ से आता है? वो अज्ञान क्यों आता है? वो माया में क्यों हम फंसते हैं? वो अटैचमेंट क्यों होता है? किसी और के साथ अटैचमेंट होता है. अगर वो दूसरा नहीं होता है तो अटैचमेंट भी नहीं आएगा, माया भी नहीं आएगा, अज्ञान भी नहीं आएगा. इसीलिए एक सिंपल वे में उस प्रोफाउंड ट्रूथ को कहा गया है कि द्वितीयाद वै भयम. जब तक एक सेकंड एंटिटी रहता है, सेपरेटनेस रहता है, तब भय उत्पन्न होता है. ये जो सेपरेटिव ईगो सेंस है हमारे, तो जो हमको सबसे अलग करके रखता है, सबको सबसे अलग करके रखता है, तो वो रूट कॉज है हमारे अटैचमेंट का, अज्ञान का, माया का और फियर का.
तो इसीलिए निर्देश यहाँ पे है कि हाउ डू यू गेट रिड ऑफ दिस सेपरेटिव ईगो सेंस एंड देन फील एक्सपीरियंस द वननेस एंड यूनिटी। जब उस एक को हम हमारे अंदर एस्टेब्लिश कर सकते हैं तब जाके ये भय से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये डुअलिटी के वर्ल्ड में जब डुअलिटी प्रिवेल करता है, डुअलिटी प्रोमिनेंट है, हम बाइनरीज में रहते हैं, तो ये भय रहेगा ही। तो इसीलिए एक ही समाधान दिया गया है, टू गेट रिड ऑफ दिस बाइनरीज यू हैव टू गो बियॉन्ड एंड देन सी दैट वन, एकत्व और समत्व, ये दो चीज को हम प्रतिष्ठित करना है। एस्टेब्लिश द वननेस एंड यूनिटी, सेमनेस एंड यूनिटी। तो इसीलिए समत्व को ही योग कह दिया गया है, समत्वम योग उच्यते, एकत्वम अनुपश्यत। जो एक को देखता है तत्र का मोह कह शोक, दुख कहां से आएगा जब हम एक को देखते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी साधना है उसका कॉन्सिक्वेंस यही होना चाहिए कि हम वो एकत्व की ओर जाए। ये सेपरेटिव ईगो सेंस है, वो सारे समस्याएं हमको पैदा करती है, हमको लिमिटेड बना देता है, दूसरों से अलग कर देता है। तो ये हमारी समस्याओं के कारण है। तो मतलब ये है कि इंसान ये सोचे, लाइक सपोजिंग इट इज, आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, ओके, एज आदित्य सेज, अपने लिए कोई भय नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे पीछे मेरे वालों का क्या होगा जो बच जाएंगे। अगर आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं तो अगर ये चले जाएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो हम ये सोचें दैट इवेंचुअली ही विल ऑल्सो, he is also going to that supreme reality, he is going to merge from where he has been manifested, and I am also going there. So is that meant by this oneness? That's what we are talking of. Is this, what is that unity? That all of us have emanated from there and eventually all of us are going to go there. So we are all, so it doesn't matter. लेकिन फिर इसमें दूसरा जो बात, जब हम अपने आसपास इतना सारा कुछ बना लेते, देखिए दूसरी तरफ ये भी तो है दैट यू डू एवरी एक्शन परफेक्टली। हाँ, उसमें ये जरूर है, यू शुड बी परफेक्ट इन योर एक्शन, यू शुड ग्रो, यू शुड इवॉल्व। पर फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल बॉडी की ग्रोथ नहीं कह रही, बट आउटर, इन द आउटर वर्ल्ड, क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं, दैट यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ association with that world, plus you need to provide for yourself, for your family, and you are dependent on all that, and as I said, it is economically driven. उस चीज को आप छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि ये भी तो भगवान कह रहे हैं कि आप खाली बैठ के और ये सोचें कि मैं आपको प्राप्त कर लूं और केवल मेडिटेट कर लूं, वो भी गलत है। तो आपको कर्म भी करना है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर हम उस तरीके से देखें तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अगर दो लोग रह रहे हैं और दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो एक के जाने से सबसे पहले लोग ये बात सोचने लग जाते हैं कि अब इस चीज को कैसे हैंडल किया जाएगा। इतनी सारी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज और ये वो सब बनती हैं, दे आर बिकॉज ऑफ दैट। तो जो लिविंग रियलिटी आपके सामने है, हाँ ठीक है, दैट इज जस्ट अ फिजिकल बॉडी एंड इनसाइड इट इज द सोल। सो आई शुड नॉट बी अनहैप्पी इफ समबडी इज देयर, तो वो उसमें लीन हो गया और वो उस वननेस में समा गया जहां से वो आया था। ये अपने आप को शांत करने के लिए ठीक है, तो इवेंचुअली आप धीरे धीरे अपने आप को शांत कर लेते हैं इससे, लेकिन वो एक फियर, इग्नोरेंस के लिए कह सकते हैं हम, देन दिस इज अ फियर ऑफ इग्नोरेंस। So Aditya, this is a fear, perhaps you will have to come out of it on your own. There is no solution for this. You have to, as Sampadanand ji said, that you have to think of the oneness, that eventually, yes, we are going to merge with that one, the supreme reality. पर आप उसके साथ में ये नहीं सोचते अच्छा ठीक है फिर वहां चल के मिलते हैं, not like that. Ma'am, I think if you start believing in God, if you believe कोई नहीं होगा तब भी भगवान तो होगा to take care of me, that would give you a lot of strength. And we need to believe जब हम नहीं थे तब भी दुनिया अच्छे से चल रही थी, जब हम नहीं होंगे तब भी दुनिया अच्छे से चलेगी. And this faith in God, depending on Him, gives you a different kind of strength. Of course, He takes care of His kids, His children. True, that's what it is. That you have to understand the supreme reality. Thank you so much. Infinite gratitude, Dr. Sampadanand ji. Your thinking is so deep, and each time we meet you and we listen to you, you give so many perspectives to what our questions are, and you have left us with so much food for thought, and try to work to make them as
humble, as curious, and as knowledgeable as Nachiketa. Infinite gratitude. Thank you.